Okay. So, welcome everyone once again on this day one of today's live workshop on sales and objection handling. So, this is going to be a very fun based learning, and I definitely would be love you to be very participative, right? So, what are we going to do today? Before I wanted to ask you, how are you doing today? मैंने पहले भी पूछ रखा बट एक बार मैं फिर से जानना चाहता हूँ कैसे हैं आप लोग. यू कैन टॉक, यू कैन पुट इट इन द चैट्स so that the energy is maintained, right? So how are you doing today? Fatafat, there should not be much time. Chat, or you can open your mic and you can just say yes, no, ha, whatever. Good. Just before coming to your meeting, Alokji, I faced an objection that Papa nahi manenge once again. अच्छा चलिए, definitely we are going to do that. अभी तो शुरुआत है, we are just beginning, right? Hi Avni, good to see you. Nice. So how are you doing today? Good, everybody good, correct? Nice. So I'm excited. How about you? Are you excited for this learning? Were you waiting for this learning? I'm not sure आप लोगों को कितना ये लगता है कि sales कितना important है. That I'm gonna cover right away. But I'm very much excited. Are you excited? Comment in the chat box that you are excited. Say it, I'm excited. Just it. I'm excited. I'm excited. I'm excited. Yes, I'm excited. Yes, nahi. I'm excited. Yes, I'm excited. There is a reason behind it. Just put it, I'm excited. Yeah, good. We are excited. Good, Anshulji. Good. Okay, so before covering everything, let me tell you, by end of this day one, you are going to learn what all things. You are going to learn the neuroscience of sales and the new ways of doing sales in 2025. 2024 is almost about to over. We are going to learn the new ways of doing sales, right? And at the end, I'll also share with you the framework of a highly effective sales call. I call it persuasive call or persuasion call, right? So stay till the end and see what all things I'm gonna cover. You'll be loving it for sure. I'm dead sure, because whenever I have given this kind of a even earlier days in my offline mode, where I was not a trainer, but I used to cater to a team in a multinational company and used to train them on sales. So everything put together, you're going to enjoy that, right? So you are going to learn neuroscience of sales, the new ways of doing sales in 2025, and I'm going to give you a framework for a highly effective sales call, right? Welcome, Vaishali ji. So before, talking about sales, let me tell you my sales journey. Now, if I come all of a sudden from some new planet, you will be wondering who the hell this person is talking about sales. मेरा sales का background क्या है ये तो आपको पता होना चाहिए ना. मैं यदि आपको sales सिखा रहा हूँ तो पहले मुझे तो sales आना चाहिए ना. So what has been my background in sales, that I want to cover in a short story format. So people who don't know me that way, let me share it with you. That by education, I'm a manufacturing engineer, a hardcore manufacturing engineer specialized in foundry forged technologies, which is the core of any manufacturing unit of any country, any world. हम लोग कहते थे कि सुई से जहाज तक कुछ भी बनाना हो तो हम बना सकते हैं. And I have been a distinction holder, and we have been given a specialization certificate for this manufacturing technologies. तो मैं हार्डकोर इंजीनियर सेल्स क्यों सिखा रहा हूँ? कहाँ से आया मुझे सेल्स? यू शुड बी नोइंग इट, राइट? So through campus, I was placed in UAE in a company which was again a production unit, and we used to manufacture petrochemical valves for European countries. राइट वहाँ पे पेट्रोकेमिकल वाल्व्स बनते थे, ऑयल एंड गैसेस जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ना उनके लिए. तो वो मेरा जो लर्निंग रहा, जो हार्डकोर इंजीनियरिंग की लर्निंग रही, वो मैंने वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया. एंड आई लर्नड द वे टू इम्प्लीमेंट वट एवर आई हैव लर्नड. एक साल मैंने वहाँ जॉब किया. आई केम बैक टू इंडिया, बैक स्टार्टेड विथ कंपनी अगेन एन इंडियन मल्टीनेशनल. वहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट इंजीनियर की जॉब शुरू करी. और विद इन 3 months of my tenure, I was given an opportunity to move to sales. This is a real story I'm sharing with you. मैं प्रोजेक्ट इंजीनियर था. मेरा काम था पोस्ट सेल्स एक्टिविटी करना. पीपल हु आर अवेयर ऑफ पोस्ट सेल्स एक्टिविटीज. और मेरा प्रोडक्ट था वो हाई एंड प्रोडक्ट हुआ करता था. मटेरियल डिलीवरी के बाद उसका इंस्टॉलेशन कमीशनिंग कराना होता था,
right? I was that guy. But in 3 months' time, my GM called me and asked me, actually did not ask me, he told me to shift into sales. मैंने कहा सर मैं तो इंजीनियर आदमी हूँ, मुझे सेल्स क्या आता, मुझे नहीं आती सेल्स. एग्जैक्टली दिस इज द वर्ड्स विच आई शेयर्ड विद हिम. मैंने कहा सर मुझे सेल्स नहीं आती. तुमने एक बड़ी अच्छी बात बोली. एंड ही वाज लाइक माय फादर फिगर, मेरे से बहुत बड़े थे. ही वाज केटरिंग टू अ बिजनेस ऑफ 400 करोड़ इन द इंटायर नॉर्थ रीजन. इतनी बड़ी कंपनी है वो. आई डोंट वांट टू नेम दैट कंपनी, बट 400 करोड़ का वो उनका नॉर्थ का था उस समय. आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर 2003, आज से करीब 21 साल पहले. और वहां पे उन्होंने मेरे को बोला कि बेटे तू सेल्स में आ जा. मैंने कहा बॉस मुझे सेल्स नहीं आती. बोला तू जो कर रहा है ना वही सेल्स है. मैंने कहा मैंने ऐसा क्या कर दिया. आई वॉज लिटरली सरप्राइज. मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे को आप बोल रहे हो सेल्स में. उन्होंने कहा कि आप जहां भी जाते हो ना पोस्ट, जैसे सेल्स वाले का काम क्या होता है, सेल्स कर दिया, उसके बाद जो प्रोजेक्ट की टीम है, डिलीवरी की टीम है, वो टेक ओवर करती है और वो सारा काम करती है. आप लोग आईटी में भी कुछ ऐसा ही करते होगे, राइट? जो आईटी वाले हैं या जो भी बिजनेस है, सेल्स का अलग काम होता है, पोस्ट सेल्स का अलग काम होता है. तो उन्होंने कहा कि बेटे तुम जहां जाते हो ना सेल्स वाला उसके बाद आउट हो जाता है. मतलब मैंने कहा उसके बाद क्लाइंट ना सेल्स वाले को फोन ही नहीं करता, वो सब तुम्हारे को ही फोन करता है. और जब हमने फीडबैक लिया तो दे टोल्ड दैट आलोक इज सफिशिएंट इनफ टू केटर टू ऑल आवर क्वेरीज एंड आवर नीड्स. दैट इज व्हाट इज अ कस्टमर रिलेशनशिप व्हिच यू आर डूइंग, सो यू आर द बेस्ट पर्सन टू गेट इनटू सेल्स. मैंने कहा अच्छा ऐसा होता है क्या. मैंने कहा बस इसके अलावा मुझे क्या करना होगा. उन्होंने बोला कि तुमको तुम्हारे सेल्स टारगेट होंगे, तुमको बेचना होगा. मैंने कहा मैंने तो आज तक बेचा नहीं कुछ. मैं तो इंजीनियरिंग का बंदा और प्रोडक्शन किया, उसके बाद अभी पोस्ट सेल्स कर रहा हूँ. देन हाउ कुड आई डू सेल्स. उन्होंने बोला विल गिव यू अ फॉर्मल ट्रेनिंग, डोंट वरी फॉर दैट, बट वट एवर ट्रेड यू हैव यू आर गुड टू गेट इन टू सेल्स. मैंने कहा सर गिव मी सम टाइम टू थिंक. तो मैंने 2 दिन का टाइम लिया. फिर मैंने अपने इमीडिएट बॉस से बात किया, अपने कुछ फ्रेंड से बात किया. मैंने कहा यार ये सेल्स की जिंदगी कैसी होती है मुझे नहीं पता. तो सब ने ये कहा कि यार सेल्स इज वेरी ग्रोइंग, सेल्स में ना ग्रोथ बहुत होती है ना. पोस्ट सेल्स में शायद आपको उतनी ग्रोथ नहीं मिलेगी, हमेशा आपको गालियां खानी पड़ेंगी. सेल्स में क्या होता है, इफ यू आर गुड इन टर्म्स ऑफ अचीविंग योर टारगेट्स तो आपकी ग्रोथ खटाखट होती है, पैसे भी ज्यादा मिलते हैं. बिकॉज सेल्स इज ऑलवेज रिवॉर्डिंग दैट वे, है ना. तो मुझे लगा कि मैंने अपने घर में भी लोगों से बात करी एंड एवरीबडी सेड दैट कोई सेल्स इज अ गुड करियर. तो मैंने पैरेलल शिफ्ट लिया. एक्चुअली मेरा कोई पैसा नहीं बढ़ा, मेरा कोई डिजिग्नेशन नहीं बढ़ा, सिर्फ डिजिग्नेशन चेंज हो गया. आई बिकेम अ सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव फ्रॉम अ सीनियर सेल्स इंजीनियर एक्चुअली, राइट. और वहां से मुझे सेल्स की जर्नी शुरू हुई. मुझे बॉम्बे भेजा गया. बॉम्बे में आई थिंक पीपल वर नियर टू बॉम्बे, बॉम्बे और पुणे के बीच में एक जगह है करजत, कजरत या करजत जगह एक है, राइट. वहां पे हमारे 4 दिन की ट्रेनिंग थी एंड वी वेर टॉक्ड अबाउट, टोल्ड अबाउट एंड ट्रेन्ड अबाउट सेल्स की कैसे क्या करना है. सो ऐसे मेरी सेल्स की जर्नी शुरू हुई. करजत, यस वैशाली, करजत. तो वहां पे एक रिजॉर्ट था उस समय. आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर 2003 एंड 4, उस एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, आज से 20 साल पहले की बात है. वहां पे रिजॉर्ट में हम लोगों को 4 दिन रखा गया था, हमें ट्रेनिंग दिया गया. विद इन द ट्रेनिंग आई वाज आल्सो एडजज्ड वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटर, क्योंकि वहां पे मॉक प्रेजेंटेशन करनी थी, मॉक सेल्स करना था एंड आई वाज वन ऑफ द बेस्ट. वो ऑटोमेटिकली होता गया बिकॉज आई एम अ फास्ट लर्नर. ऐसे करके मेरी सेल्स की जिंदगी शुरू हुई. और उसके बाद मेरा टारगेट क्या मिला आप लोगों को हंसी आएगी सुन के. या मेरा जो पहला टारगेट था पहले साल का 2003 का, उस समय था 6 करोड़. आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर 2003 वेयर माय सेल्स टारगेट वो 6 करोड़. मैंने कहा यार 6 करोड़, 6 करोड़ इज अ बिग नंबर, कहाँ से कर पाऊंगा. तो जो मेरे इमीडिएट बॉस थे उन्होंने बताया कि बेटा तुम्हारे को ना बड़े बड़े क्लाइंट्स मिलेंगे. मैंने व्हाट यू मीन बाय बड़े क्लाइंट्स. So I got some multinational clients were again Indian, not Indian multinationals, plus कुछ IT कंपनीज मिले, प्लस कुछ PSUs मिले, जिसको नवरत्ना भी आप कहते हो ना, नवरत्ना के कुछ मिले. तो उनके साथ हमारी कंपनी का कुछ रेट कॉन्ट्रैक्ट टाइप का था, तो उनको बस अच्छे से सर्व करना था, टारगेट यूं ही पूरे हो जाने थे. बिकॉज अभी तक उनको ये दिक्कत हो रही थी कि उनको ढंग से सर्विस ही नहीं कर पा रहा था. आई अचीव्ड माई टारगेट लाइक एनीथिंग. बहुत आसानी से अचीव कर लिया. मुझे सेल्स अच्छा भी लगने लगा, और मुझे अच्छा इस बात से भी लगने लगा क्योंकि आई वॉज एबल टू बिल्ड रिलेशनशिप, एंड दैट्स द कोर ऑफ सेल्स. सो दिस वॉज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्स. उसके बाद मैंने अलग अलग कंपनियों में काम किया, टारगेट बढ़ते गए, प्रोफाइल बढ़ता गया, पोजीशन बढ़ती गई, एंड आई रिजाइंड इन ईयर 2010 फ्रॉम अगेन एन इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी, फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ रीजनल मैनेजर वेयर माई टारगेट वॉज 30 करोड़, राइट. तो ऐसे करके मेरी सेल्स की जर्नी थी. सो टिल डेट इफ यू आस्क मी, आई हैव डन अ सेल्स ऑफ अराउंड 90 करोड़ प्लस. मेरे किसी पोस्ट में आपने देखा होगा
90 करोड़ प्लस सेल का किया, जिसमें मैं कंपनियों के साथ काम करके किया, प्लस अपनी कंपनी में भी किया। मेरी अपनी कंपनी 2010 में शुरू करी, और मेरा पहला और सबसे बड़ा, पहला नहीं, जो सबसे बड़ा सिंगल ऑर्डर था वो 1 करोड़ 70 लाख का था। मैं उससे बड़ा ऑर्डर अपने कंपनी में नहीं किया, उससे छोटे छोटे करे हैं। So this is in short my sales journey. So now I wanted to ask you, यदि आप मेरे बारे में नहीं जानते कि मैंने सेल्स कैसे सीखी, कहाँ से सीखी, तो क्या आप मेरे से सीखने के लिए रेडी होते? एक जनरल ओपिनियन में पूछना चाह रहा हूँ कि एक बंदा जो सिखा रहा है, यदि खुद उसने जिंदगी में वो नहीं किया है, तो क्या आप वैसे आदमी से सीखना चाहोगे जिन्होंने खुद वो चीज नहीं करी है? नहीं। that's my point. Yes, that's my point. So आप लोगों को कहीं से भी सीखिए, वहां से सीखिए जहां से उस बंदे ने किया हो खुद के ऊपर। सो मल्टीपल प्रोडक्ट्स मैंने किए हैं, ऑडियो विजुअल वाज वन ऑफ माय प्रोडक्ट्स। आई एम सॉरी। ऐसे करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स, मैं अब उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। Just wanted to tell you that this is my background of sales, and that is why I'm so confident talking about sales. और कोचिंग बिजनेस में भी sales is again a very important parameter. I'm sorry for me coughing because of some cold and cough, but anyway, so let's start. uh Hardly it's been 10 minutes. Okay, so I have already shared you my sales journey. Now I'm going to tell you, ये मैंने आपको बताया कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग से प्रोडक्शन में गया, प्रोजेक्ट इंजीनियर सेल्स में गया. Now day one is all about sales, as I told you, and end of the day it's all about sales. Why it's all about sales? क्योंकि सेल्स से क्या आता है? पैसा आता है. और जब आपने सेल्स के बारे में बात करी है, तो आप लोगों ने ये बहुत सुना होगा, ये एक वीडियो, ऐसे 50 वीडियो इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर है, सेल मी दिस पेन. हैव यू एनीबडी सीन दिस काइंड ऑफ अ वीडियो वेयर पीपल आर टॉकिंग अबाउट सेलिंग दिस पेन टू समबडी? देखा है आप लोगों ने? किसी ने सुना होगा? एनीवन? सेल मी दिस पेन, Yes, yes. सुना है ना? There's So a Hollywood movie also in which Ronaldo DiCaprio, I don't know the name of actor, he told the other person, "Sell me this pen." करेक्ट, बहुत सारे वीडियोस हैं इसके ऊपर. सो इफ आई टेल यू सेल मी दिस पेन, हु इज गोइंग टू सेल मी दिस पेन? Any volunteer who wants to sell me this pen? Any pen? I have two pens. मैं पेन का शौकीन भी हूँ, मैं आपको बताऊँ. मेरे पास एक पार्कर है और एक कैमी का फोन है, इट्स अ जर्मन कंपनी. इस पेन की कीमत करीब 2,500 रुपये के आसपास है. मैं पेन का शौकीन हूँ, बट वो टॉपिक नहीं है. टॉपिक है कि हु इज गोइंग टू सेल मी दिस पेन? विच पेन यू वांट टू सेल टू मी? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी. ये पार्कर का पेन है और एक कैमी का पेन है. विच पेन एंड हु इज गोइंग टू सेल टू मी? We'll just see. I told you this is a workshop, and we are going to do lots of activities here. सिर्फ theory और ज्ञान बांटने में नहीं आया हूँ. Anyone? Come on. We are not here to judge anybody. हम लोग सब यहाँ learning के लिए हैं. Let's do it ना. Workshop का मतलब यही होता है कि we do something on the spot, live learning. Don't hesitate. Yes. Come on. Any volunteer? या तो फिर मैं नाम लेके बोलूंगा सबको. या अंशुल जी, मैं तो आपको पकड़ूंगा. Start. Just see, just try ना, क्या होता है? Doesn't make any difference. Let us see how it goes. Are you ready? अंशुल Okay. जी, ठीक है ना? Hmm. Okay, so Maybe I'll come second. I'll just give me some time to think. okay. Vimal ji, you are not switching your camera. If you are the same Vimal ji, along with whom we have worked for some time, somewhere in the past, it's okay. यदि नहीं भी हैं तो यदि जो भी हैं, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा. जयती जी, वैशाली जी, हाय अनुपम, गुड टू सी यू. या एनीवन? कोई तो आगे आइए भाई. किसी को इंटरेस्ट नहीं है बेचने में, तो फिर कैसे बिजनेस करोगे आप लोग? हम्म, पैसे तो बिजनेस सेल्स से ही आते हैं भाई. So Anupam, you are a little late. I was talking about selling a pen. Who is going to sell me this pen? एक पेन बेच के दिखाओ मुझे आप, कोई भी. इतना टाइम नहीं है. कम ऑन. अंशुल जी is going next, second. So who is the first?
वैशाली जी आप हैं, जयती जी आप हैं, विमल जी, अवनी जी, अनुपम, सिद्धार्थ जी, हु इज गोइंग टू सेल दिस पेन टू मी? हम 2 घंटा टाइम लेके चलें, आपको 2 घंटे से ज्यादा मैं नहीं लूंगा। सो कौन सा रेस्ट पेन है? एश्योर्ड। मेरे पास 2 पेन है, एक तो पार्कर है, राइट, और एक है कैमी। हम्म। कैमी इज अ जर्मन कंपनी। और मैं क्योंकि पेन का शौकीन हूँ, थोड़ा महंगा पेन है ये, 2,500 रुपये का पेन है। और आप देखोगे ओके। पूरी ट्रांसपेरेंट बॉडी है जी इसकी। जी जी जी। तो विच पेन यू वुड लाइक टू सेल टू मी? मैं आप ही को चॉइस देता हूँ, फिर वो पेन बेचना आप मुझे। जी आपने जो अभी बताया 2,500 वाला वही चाहेंगे। कैमी, कैमी इट्स अ जर्मन कंपनी, कैमी नाम है इसका। आप नेट, सॉरी लैमी, इसको आप नेट पे भी ढूंढ सकते हो, LAMY इज द ब्रांड। ठीक है। ओके सो लेट्स ओके। लेट्स स्टार्ट विद इट, लेट मी पिन यू एंड लेट्स डू इट। इट्स अ रोल प्ले एक्चुअली। मैं ठीक है। बताना चाहता हूँ कि व्हाट वी डू एंड हाउ वी शुड बी डूइंग इट। ओके, गुड। दैट फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस दैट यू टुक दिस प्लंज टू गो फर्स्ट। जो पहला थैंक जाता यू। है ना, उसमें बहुत करेज की जरूरत होती है। सो लेट्स सी। या गुड। Yeah, Anupam, go ahead. Sell me this pen. Sell this Lamy pen to me. जी, as you see, this is a new kind of pen which has been introduced to the market. Mm-hmm. This has been launched after a lot of research, a lot of survey to Mm-hmm. the Indian market and to the world market also. This Okay. pen is successfully being used all over the world. Mm-hmm. And as you see, the world is growing day by day. There is a lot of competition, lot of new kind of technologies coming up and coming up at each and every field. So why Mm-hmm. not in pen? A pen which will give you the kind of writing experience which you want to, and the kind of the sort of pain people generally get while writing a pen Mm-hmm. using a pen. And it is also being tested at various of the labs where the people has got the right kind of experience while writing. Mm-hmm. And it is giving the ink which is being used is it's like a never ending process. It Mm-hmm. takes too much duration. It gives you a lot of duration while you're using the pen. Okay. आप अगर पेन यूज कर रहे हैं, जब भी आप देखते हैं इंक खत्म होता है तो कई बार उसमें क्या एक इंटरप्शन टाइप भी आता है, एक फ्लो आता है जो आप लिखते हैं, Mm-hmm. एक फ्लो जो है वहां पे ब्रेक होता है। सो उसमें वो चीज जो है नहीं है। Mm-hmm. Apart from that, this pen is used by various persons, those who are multimillionaires, those who are successful. ये पेन जैसे हम लोग बताते हैं कि 5 रुपए का भी आता है और ये 2,500 का पेन है। Mm-hmm. आप अगर देख सकते हैं आज के डेट में टेक्नोलॉजी वाइज एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इतने Mm-hmm. महंगे हैं। मोबाइल फोन्स बहुत सारे कंपनीज आज के डेट में हैं, बट वाई एप्पल इज सो मच ऑफ कॉस्टली एंड पीपल यू हैव सीन दैट इन द मार्केट रात को 12 बजे से लाइन लग जाती है एप्पल का जो शॉप है उसके बाहर में। क्यों? बिकॉज पीपल प्रेफर क्वालिटी। Okay. लोगों के पास पैसा है और अगर क्वालिटी चाहिए यू हैव टू पे दैट प्राइस। बेचोगे कब मुझे? मैं तो उसके एडवांटेजेस बता रहा था। Okay. तो तो आप बताइए, मैंने जो जो एडवांटेजेस बताया इस पेन के बारे में, इस ब्रांड के बारे में, Mm-hmm. अभी आपकी क्या राय है इसके बारे में? राय बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा पेन है। तो फिर व्हाई डोंट यू गो विद दैट? देखता हूँ मैं, सोचता हूँ। देखिए इतने साल से तो आप सोच रहे होंगे, तो इस तरह का पेन जो है मार्केट में आया है, व्हाई डोंट यू हैव द फील? Okay, let me take my time. I'll decide and buy. Give me some time. टाइम फॉर व्हाट से? पेन तो मतलब आप जैसे इतना कंटेंट आप पब्लिश करते हैं तो यू मस्ट बी यूजिंग वेरियस काइंड ऑफ पेन। इतने सॉफ्ट साल कॉपी तक यूज यूज कर ही रहे होता हो। है, सॉफ्ट कॉपी यूज करता हूँ। सब तो लैपटॉप पे लिखते हैं अभी, मोबाइल पे लिखते हैं। वो ठीक है बट फिर भी पेन का जो एक अलग ही फीलिंग होता है। Yeah, हम I लोग जब totally से get it. हम लोग जब से करियर चालू किए हैं, मैं अगर मेरा केस बोलूं तो आज के डेट में मैं कॉपी किताब लेके बैठता हूँ, मैं लिखता हूँ बिकॉज वो मुझे एक फीलिंग देता है। Mm-hmm. वी हैव ई बुक्स, वेरियस टाइप ऑफ कॉपीज, बट स्टिल जो हार्ड कॉपी वाला फीलिंग में हमें आती है वो ई बुक में हमें नहीं आती है। Exactly. वो तो सो जनरेशन का गैप है, या।
I जी totally जी appreciate that. तो उसके साथ क्या है कि एक इमोशनल टच हो जाता है हमारा. See, whatever you said, Anupam, nothing wrong in it. पर But हम जी लोग सेल्स पे आ ही नहीं रहे हैं एक्चुअली, ओके है ना? So your try was really good, and this is a normal approach which people talk. Right now, I'll give you a better option how to do it, how to handle it. Let me go with Anshul ji for the second, as he told me that he'll be going second. But your try was really nice. और yes, there is a need to improve on this, क्योंकि sales ऐसे नहीं होती है, ठीक है? Your approach is good, which you might have learned by doing, because आपका भी sales का प्रोफाइल रहा नहीं है कभी. जी 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 So जी you are talking about the advantages of it, the benefits of it. That's okay. Let's जी see how it has to be ओके done. Okay. ओके सर, थैंक यू सर. Okay. अनुपम, आप बहुत अच्छा किया आपने. अब नाउ आई विल बी मूविंग टुवर्ड्स अंशुल जी. अंशुल जी, इट्स योर टर्न नाउ. यू हैव टू सेल तो मी दिस पेन. या, द लैमी what is the- वन. इसकी कॉस्ट क्या बताई आपने, क्या 25 क्या? 25 INR 2500. 25, okay. So, sir, my name is Anshu Saxena, and I am so and so company, a pen branded company, and this is one of the best best model we have launched this year in 2024. Mm-hmm. And you are at an executive position. You are a director of this company. So, I don't think these 20 rupees or 30 rupees pen will match with your reputation and brand value. So I would is to go for this exclusive brand, premium brand. It's a branded brand, and it will look good on you if in case you put it in your pocket, and it will create a long lasting impression of the people working with you. Mm-hmm. So go ahead and buy this pen. It is also available online and offline also. गुड. बेचा नहीं ना आपने मुझे तो. आपने तो भूल दिया कि हाँ यहाँ से जाके खरीद लो. राइट, है ना? यू लिटरली मेड मी अवेयर, है ना? आपने मेरे को अवेयरनेस दी कि हाँ ऐसे एक कंपनी है जो मेरे ब्रांडेड पेन बनाती है और आपके ऊपर प्रोफाइल के ऊपर सूट करेगा, एंड आप जाके खरीद लो ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी. राइट. Would you like to buy this pen? ऐसा ऐसा बोलना चाहिए. हाँ, वो मैं बताऊंगा क्या बोलना चाहिए. See, now in both the cases, I'll be moving forward. मैं हड़बड़ी में नहीं हूँ, लेकिन मैं दो लोगों का जो व्यू लिया, अब now I'll be giving you an idea कि कहाँ पे आपने क्या मिस्टेक करी और क्या होना चाहिए था. राइट. अभी क्या हुआ, आप देखा, आप दोनों लोगों ने यू ओनली टॉक्ड अबाउट योर सेल्फ. आप लोगों ने टटर टटर अपनी बातें करनी शुरू की. प्रोडक्ट ऐसा है, कंपनी ऐसी है, ये बेनिफिट है, आप पे ये लगेगा वो लगेगा. राइट. यू नेवर बॉदर टू आस्क मी मुझे चाहिए क्या. करेक्ट. सो दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक विच मोस्ट ऑफ द सेल्स पीपल डू, जिनको नहीं पता है कि सेल्स कैसे करते हैं. तो इसको हम लोग करेंगे. कैसे करेंगे ये मैं कल करूंगा, क्योंकि मेरा पूरा सेल्स ऑब्जेक्शंस और ये सारी चीजें वहां है. बट मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप लोगों ने, दोनों लोगों ने जो किया ना, उसमें क्या हुआ कि यू ट्राइड टू टॉक अबाउट द बेनिफिट्स, द फीचर्स, द एडवांटेजेस. यू नेवर ट्राइड टू आस्क मी एनीथिंग, विच इज द मेजर मिस्टेक. करेक्ट. सो गोइंग फॉरवर्ड आई टेल यू कि क्या पूछते हैं, कैसे पूछते हैं, और आगे इसका कैसा प्रारूप होना चाहिए. राइट. वॉज इट हेल्पफुल फॉर अदर्स एज वेल? यस. ठीक है. Good. Now let's move on to the concept of this. Okay. The epiphany is nobody wants to be sold, everybody wants to buy. अभी आप लोगों ने क्या किया, मुझे एक्चुअली ढंग से बेचने की भी कोशिश नहीं करी. बट एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी बेचना, मतलब कोई भी सोल्ड नहीं होना चाहता, हर कोई बाई करना चाहता है. ये प्रवर्ब आपने सुना भी होगा, एवरीबडी वुड लव टू बाई, है ना? और जब तक आप उस बंदे को ये महसूस नहीं कराओगे कि वो खरीद रहा है, उसको अच्छा नहीं फील होता है. हैव यू एवर रियलाइज दिस फैक्ट दैट नोबडी वांट्स टू बी सोल्ड, एवरीबडी वांट्स टू बी. आप जाते हो बाजार, कहते हो हम खरीदने जा रहे हैं, आप ये बोलते हो कि मेरे को कोई बेचने वाला है वहां जाने पे. व्हाट डू यू से? आप जा रहे हो खरीदने के लिए. राइट. यू आर गोइंग टू बाई समथिंग. करेक्ट. So this is an epiphany which you should also feel, that you should not allow anybody feel that they are getting sold. You need to tell them, you need to make them feel that they are buying something from you. It's a major shift in sales,
राइट? ओके, अब सेल्स बुरा है कि अच्छा है? इज सेल्स गुड और बैड? बहुत सारे सेल्स लोग ना सेल्स को बुरा बोलते हैं. इज सेल्स गुड और बैड? एनीवन? Good. गुड. गुड, ऑलवेज गुड ना. विदाउट सेल यू कैन नॉट. चीजें खरीदेंगे बेचेंगे कैसे, मतलब एक बिजनेस कैसे होगा? Exactly. The entire ecosystem of this world, the humanity is based on sales. क्योंकि हम हर चीज खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हम हर चीज कुछ बना नहीं सकते, हमारी जरूरतें हैं. कोई बना रहा है तो हम खरीद रहे हैं, हम बना रहे हैं कोई दूसरा खरीद रहा है. ऐसे ही इकोसिस्टम चलता है, ऐसे ही इकोनॉमिक्स चलता है, ऐसे ही दिन दुनिया चल रही है. और आज से नहीं चल रहा है, वर्षों से चल रहा है, सदियों से चल रहा है. ट्रांजैक्शंस होते रहे हैं. पहले क्या होता था? करेंसी नहीं होती थी. पहले क्या होता था? गुड्स एक्सचेंज होते थे, है ना? गुड्स के बदले गुड्स. आप एक गुड प्रोड्यूस कर रहे हो, दूसरा कोई और कर रहा है, तो वो एक्सचेंज होता था. दैट वाज आल्सो बिजनेस. उसके बाद करेंसी आ गया, तो गुड्स वेर एक्सचेंज फॉर करेंसी, बट सेल्स वाज देयर. सेल्स इज टुडे आल्सो. और बिना सेल्स के दुनिया नहीं चल सकती. सो यदि सेल्स नहीं होगा तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है. सो सेल्स इज ऑलवेज गुड विथ अ गुड इंटेंट, राइट? नाउ व्हाई सेल्स? बिकॉज इट ब्रिंग्स कैश टू योर बिजनेस. सेल्स होता है तो आपके पास कैश आता है. एज सिंपल एज दैट. एवरीबडी अग्री टू दैट, है ना? ओके, अब आप समझिए कि सेल्स और मार्केटिंग में फर्क क्या है. बहुत सारे लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा 24 साल का सेल्स प्रोफेशन का करियर है, इसमें मैं बताता हूँ बहुत सारे लोगों को सेल्स और मार्केटिंग का फर्क ही नहीं पता है. कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग? सिंपल वर्ड्स में. Marketing is, yes. Go ahead. Marketing, marketing is to advertise the product in market. Okay. Sales is to generate sales. Through Right. marketing, we get sales. या दैट्स ओके. मैं दोनों में डिफरेंस पूछ रहा हूँ, ठीक है? आपने सही एक्सप्लेन किया. एनीबडी एल्स? अंशुल जी, आप कुछ कह रहे थे? Yes, so actually, marketing is showcasing our products and services to the world. It can be in offline world or it can be in online world, through social media, maybe Instagram or Facebook. Right. And sales is when your marketing meets the actual customer and they take the final decision to buy that product. That is sale and pay the amount. श्योर. इसी को थोड़ा सा और मैं सिंपल बनाना चाहूँ. बहुत सिंपल. सी माई एक्सपर्टीज इज सिंप्लिसिटी. मैं इसको एकदम सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊंगा. मार्केटिंग को यदि बड़े डेफिनेशन में बात करें, जो आप लोगों ने बोला कि अवेयरनेस जनरेट करना होता है ना? कंपनी का ब्रांड वैल्यू बनाना होता है, बहुत सारे स्ट्रैटेजी यूज करनी होती है, और एक लार्जर ऑडियंस को ऊपर फोकस करना होता है. ये मार्केटिंग का एक्चुअल गोल क्या है? ब्रांडिंग और ट्रस्ट वैल्यू इंक्रीज करना होता है, राइट? द मेन पर्पस ऑफ मार्केटिंग. मैं मार्केटिंग का लेक्चर IIT दिल्ली से लिया हुआ हूँ, डिजिटल मार्केटिंग का स्पेशली. उसमें यही हमें सिखाया गया है. द कोर पर्पस ऑफ मार्केटिंग इज सरप्लस ऑफ ब्रांड वैल्यू एंड सरप्लस ऑफ प्रॉफिट्स, राइट? ब्रांड वैल्यू बढ़ाना होता है. उसके बहुत तरीके. आई डोंट वांट टू गेट इनटू द नो द टेक्स्ट पार्ट ऑफ व्हाट आई हैव. आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि मार्केटिंग का पर्पस क्या है? अवेयरनेस एंड ब्रांड वैल्यू. एंड दोनों का रिजल्ट क्या होता है? प्रॉफिट. सेल्स क्या होता है? सेल्स इज अ रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड द कस्टमर, जहां पे, जैसे अंशुल जी ने बताया कि सेल एंड बाइंग होती है, राइट? यहाँ पे वन एंड वन इंटरेक्शन होता है, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, नेगोशिएशंस होती हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं. अब इसको मैं थोड़ा सा और सिंपल शब्दों में बोलूं तो सेल्स क्या होता है? सेल्स, और सॉरी, मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग होता है कि कंपनी में जो कोई प्रोडक्ट बन रहा है, वहां से उसको मार्केट में लेके जाना. दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग. ट्राई टू अंडरस्टैंड. फ्रॉम द फैक्ट्री टू द मार्केट इज कॉल्ड मार्केटिंग. सिंपल है. फ्रॉम द फैक्ट्री या फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, चाहे वो किसी तरह का भी हो, वो होता है मार्केटिंग. और सेल्स क्या होता है? फ्रॉम द मार्केट टू द कस्टमर. इज इट क्लियर? मेकिंग सेंस? इजी. फैक्ट्री से मार्केट तक जाना इज मार्केटिंग, मार्केट से कंज्यूमर के पास जाना इज सेल्स. सिंपल वर्ड्स, क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है? ओके. सो समरी यदि मैं इसको बोलूं, सेल्स और मार्केटिंग का, मैंने जानबूझ के ये स्लाइड्स इसलिए इंट्रोड्यूस करे थे सो दैट यू आर वेरी क्लियर कि सेल्स और मार्केटिंग का क्या फर्क होता है.
Sales focuses on the need of the individuals or the company, where marketing focus on the need of the market, right? Marketing market के ऊपर फोकस करती है, सेल्स इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करता है. Clear? Okay. Now there are some myths about sales in coaching. कोचिंग में मैं चूंकि स्पेशली कोचेस के साथ एक काम करता हूँ, तो मैंने जो महसूस करा और मैंने जो इतने सालों में देखा है, उसमें मैंने यही महसूस किया कि देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स स्पेशली इन द कोचेस अबाउट सेल्स. तो क्या है वो कॉमन मिथ्स? लेट्स टॉक अबाउट इट. पहला मिथ ये है, वी आर नॉलेजेबल, पीपल विल कम टू अस ऑटोमेटिकली. हम तो कोच हैं भाई, हमें तो सब आता है, हमने इतना सर्टिफिकेशन लिया है, हमारे ये क्वालिफिकेशन है, हमारे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है, लोग तो हमारे पास खुद आने चाहिए. ऐसा होता है? हैव यू एवर हैड एनीबडी फेल्ट लाइक दिस? हैज एनीबडी फेल्ट लाइक दिस? कम ऑन, यस, नो? वैशाली जी आप कुछ बोल रही हैं? यस यस यस, गुड. ऐसा लगता है ना कि यार हम तो इतने नॉलेजेबल हैं, हमको क्या करने की जरूरत है, लोगों को तो हमें हमारे पास ही आ जाना चाहिए. बट दिस इज अ मिथ. व्हाई दिस इज अ मिथ? आई विल बी डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट इट. एटलीस्ट आफ्टर लिटिल बिट ऑफ नॉलेज शेयरिंग के बाद तो जरूर आना चाहिए ऐसा तो पक्का लगता. नहीं, बट होता नहीं है वैसा, इसीलिए मैं इसको मिथ कह रहा हूँ. हमें ऐसा महसूस होता है कि यार हम तो इतने काबिल हैं, हमने इतने सर्टिफिकेशंस कर रखे हैं, हम इतना ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, बट लोग ऐसे नहीं आते. सो दिस इज अ मिथ, दैट इज व्हाई आई हैव पुट इट एज मिथ नंबर 1. सेकंड मिथ इज पीपल नीड आवर सर्विसेज, दे वुड फाइंड अस. अगेन उसी का तो समझिए कि थोड़ा सा सिमिलर ही है, कि लोगों को तो जरूरत है ना भाई, लोग तो आएंगे, हमें ढूंढेंगे, कहीं ना कहीं से तो हम मिल ही जाएंगे, राइट? ये भी एक मिथ है. कभी फील किया आपने कि हाँ, ये भी एक ऐसा लगता है कि यार लोग इतने लोग परेशान है यार, लोगों को तो समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, तो लोग कहीं ना कहीं से तो हमें ढूंढ लेंगे. दिस इज ऑल्सो अ मिथ. अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट myth about sales, especially in coaching and freelancing business. Third, we are coaches. Uh, sorry, why should we go to someone or approach someone for selling our services? हम लोग तो कोच हैं भाई, हम लोगों के पास तो इतनी नॉलेज है, हम बेचने क्यों जाएं? ऐसा कभी लगा हम क्यों बेचे? वी आर नॉट गुड एट सेल्स एंड वी आर डेफिनेटली कोचेस, हमारा तो एक्सपर्टीज भी नहीं है सेल्स का, तो हम क्यों जाए बेचने के लिए? ऐसा कभी लगा? वैशाली जी इज ऑलवेज सेइंग यस. मैंने आपसे पूछ के तो पीपीटी नहीं बनाई थी. नहीं तो मैंने आपको एक बार पहले भी कहा था कि सेल्स और ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट पार्ट है. मतलब मुझे समझ में ही नहीं आता कि बेचूं कैसे. अभी वो Right. पेन का एग्जांपल था तो तब मुझे लगा था कि ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं. बट हम्म. जब बेचने की बारी आपकी आवाज कट गई वैशाली आती जी. हाँ हाँ. रियल टाइम बेचना होता देन इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट. या चलिए, नो इश्यूज. सो दिस इज मिथ नंबर 3. वी आर कोचेस एंड वी थिंक दैट हमें एक दूसरे को जाने की क्यों जरूरत है? व्हाई शुड वी बी अप्रोचिंग समबडी टू सेल आवर सर्विसेज, राइट? लेट्स गो टू द फैक्ट्स नाउ. मैंने ज्यादा मिथ्स नहीं लिए, 3 मिथ्स बहुत है हमारे को समझने के लिए. इस 3 मिथ को अभी इसको फैक्ट में जानते हैं कि इसका अब फैक्ट क्या है. सो द फैक्ट इज, फैक्ट नंबर 1, वी आर इन अ मार्केट प्लेस. हम लोग मार्केट प्लेस में हैं, और मार्केट प्लेस में ही सेलिंग एंड बाइंग होती है ना. कभी भी कोई ट्रांजैक्शन होता है उसके लिए आपको एक मार्केट प्लेस में होना पड़ता है. चाहे आप नॉर्मल दुकान में जाके खरीदते हैं, वो भी एक मार्केट प्लेस है. वहां पे एक शॉपकीपर ने कुछ प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, हम जाते हैं उस दुकान में, दैट बिकम्स अ मार्केट प्लेस. वहां पे वो सेल कर रहे हैं, हम बाई कर रहे हैं. आप ई कॉमर्स वेबसाइट्स देख लीजिए, वहां पे साइट पे अपने हजारों लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं. वहां पे वो एक प्लेटफॉर्म बन गया, वहां पे हम एज ए बायर जाते हैं, वहां से खरीद के लाते हैं. सो वी आर इन अ मार्केट प्लेस, राइट? यदि हम मार्केट प्लेस में हैं, नहीं रहेंगे, तो हमसे कोई क्यों खरीदेगा? कनेक्शन ही नहीं बैठेगा ना. जो पहला मिथ था आपका कि वी आर नॉलेजेबल, पीपल वुड ऑटोमेटिकली कम टू अस, ये नहीं होता है. इसका फैक्ट ये है कि हमें मार्केट प्लेस में रहना है, और मार्केट प्लेस में जब तक हम एक प्लेटफॉर्म पे बायर और सेलर का मीटिंग नहीं होगा, तब तक ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है. यस और नो? टेल मी. है ना? सो सिंस वी हैव टू बी इन अ मार्केट प्लेस, एंड एक्चुअली वी आर इन अ मार्केट प्लेस. जब मार्केट प्लेस में है, और जब तक हम अपने बायर के पास नहीं पहुंचेंगे, तो हमसे कोई प्रोडक्ट कैसे खरीदेगा, राइट? Similarly, fact number 2 is we need to have a system to get clients regularly. हम कहते हैं यार हम क्यों अप्रोच करें? जो मैंने आप देखा मिथ नंबर 2 लिखा था, पीपल विड फाइंड अस. भाई लोग
फाइंड कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे पास क्या है? वी नीड टू हैव अ सिस्टम so that people could find us, right? And we need regular business, so we need to have a system to get clients regularly, right? And third, we should be knowing the latest methods and trends and buying behavior of customers. चाहे उसके लिए आपको tools चाहिए, systems चाहिए, जो भी चीजें चाहिए, चाहे लर्निंग करनी है सेल्स की, वो हमें चाहिए. यदि हम ये नहीं करेंगे तो हाउ आर वी गोइंग टू सेल? करेक्ट? एक मार्केट प्लेस में एक बायर और सेलर का मिलना जरूरी है. मिलने के लिए एक सिस्टम होना जरूरी है, और सिस्टम को रन करने के लिए आपके पास वो आर्ट होना चाहिए. इज इट क्लियर? आर द मिथ्स बस्टेड आउट से? मिथ्स क्लियर हो गए आपके? ओके, लेट्स मूव नाउ. लेट्स टॉक अबाउट, कहाँ चला गया? हाँ ठीक है. सो लेट्स मूव अबाउट नाउ द साइंस बिहाइंड सेल्स. मैंने आपको बोला था कि आई विल बी टॉकिंग अबाउट द न्यूरो साइंस बिहाइंड सेल्स. सेल्स होता क्या है और न्यूरो साइंस क्या है? सो सेल्स क्या है? एक साइंस बेस्ड एक्टिविटी है जिसमें मल्टीपल रिसर्च किए गए, जिसमें सोशल साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइंस, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, कस्टमर के बिहेवियर्स, इंडिविजुअल बिहेवियर्स और बहुत सारी चीजों को मिलाया गया. तब जाके उसके स्टडी को जब पढ़ा गया तो उसको हमने न्यूरो साइंस नाम दिया. हमने नहीं नाम दिया, मतलब रिसर्चर्स ने नाम दिया. सो द साइंस बिहाइंड सेल्स इज ऑल न्यूरो साइंस. Correct? But before getting into the neuroscience of sales, let's understand the two primary reasons for a sale happening. Number one is a pain, number two is a desire. जब तक आपके पास पेन या डिजायर नहीं गए थे, आपकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, आपको किसी चीज की ख्वाहिश नहीं है या आपको किसी चीज का दर्द नहीं है, तो आप बाई नहीं करेंगे. राइट? टेक एग्जांपल ऑफ एनी प्रोडक्ट, एनी सर्विस. आप इंश्योरेंस खरीदते हो, डर है ना? डर है कि मेरे बाद मेरे फैमिली का क्या होगा. आप घर खरीदते हो, आपकी ख्वाहिश है कि यार आपके पास एक अपना अपना घर होना चाहिए. आपकी बड़ी कार चाहिए, क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि यार नाउ आई आई डिजर्व अ बिग कार. डिजायर या पेन होता है. इज देयर एनीथिंग एल्स इसके अलावे जिसके कारण से आप खरीदते हो? नीड स्टेटस भी है. बेस, यस, नीड बेस, नीड. नीड. वही है ना, नीड. मतलब पेन और डिजायर का ही एक पार्ट, सबसेट कह सकते हैं नीड. राइट? आपकी नीड है. ठीक है. नाउ स्टेटस भी सर उसी में आ जाता है, डिजायर में ही आ हाँ, जाता है. डिजायर में स्टेटस आ जाता है. एग्जैक्टली. सो ये प्राइमरी रीजन है. इसके सबसेट्स आप बना सकते हो मल्टीपल अलग अलग वर्ड्स में, बट दीज आर टू प्राइमरी रीजंस बिकॉज ऑफ विच अ सेल हैपेंस. राइट? थ्रू आउट द ग्लोब एवरीबडी इज आइदर बाइंग बिकॉज ऑफ पेन और अ डिजायर. नाउ पेन इज ऑलवेज पावरफुल देन डिजायर. यदि मैं आपको बोलूं कि आपको एक कार खरीदनी है और आप कहोगे कि यार चलो 2 दिन के बाद ही खरीदेंगे, तो उसकी कोई मुश्किल की बात नहीं है क्योंकि वो डिजायर है. लेकिन यदि आज आपकी तबीयत खराब हो, आपको जुकाम हो गया हो या आपको बुखार हो गया, तो आप कोशिश करोगे कि तुरंत जाके डॉक्टर के पास जाए. होता है. सो पेन इज ऑलवेज पावरफुल देन डिजायर इन सेल्स एज वेल. तो पेन को आप देखेंगे, जितने भी कोचेस लोग सिखाते हैं या बोलते हैं, वो यही कहते हैं ना कि पेन पॉइंट्स की लेकर बात करो. क्यों? क्योंकि पेन इज ऑलवेज पावरफुल देन डिजायर. है ना? ओके. अब दो अलग फैक्टर्स में बात करने वाला हूं फॉर सेल्स टू हैपन. इफ समबडी इज ट्राइंग टू सेल समथिंग, उसके पीछे दो बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जो लोग मिस कर जाते हैं, विच आई वांट टू एम्फेसाइज हियर, विच इज नंबर 1 इंटेंशन एंड नंबर 2 एक्सप्रेशन. इंटेंशन क्या? आपकी नीयत क्या है सेल करने के पहले? आपकी नीयत क्या है? बेच के भाग जाना है? यदि ये चीज होता है तो आपका सेल नहीं हो पाएगा. राइट? सो इंटेंशन क्लाइंट बहुत आसानी से समझ पाते हैं. ऐसा नहीं कि क्लाइंट भी हम जैसे लोग ही तो हैं जो कुछ ना कुछ बाई कर रहे हैं. वो समझ लेते हैं कि आपका इंटेंशन क्या है, बिकॉज ऑफ द वे यू टॉक, द वे यू डू, द वे यू यू नो डू वट एवर यू वॉन्ट. करेक्ट? तो वो उनको दिखता है कि इस बंदे का इंटेंशन क्या है. और एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन इज, यदि मैं इसको डिफाइन करूं तो एक्सप्रेशन होता है कि आप जो उसको ओवरऑल एक्सपीरियंस देते हो एक ड्यूरिंग द सेल्स प्रोसेस, उस प्रोसेस के एक्सपीरियंस को मैं एक्सप्रेशन कहता हूं कि आपने कैसे अपने आप को एक्सप्रेस किया. तो इंटेंशन एंड एक्सप्रेशन आर द टू फैक्टर्स व्हिच गवर्न अ सेल्स टू हैपन. ये नॉर्मली लोग बात नहीं करते हैं, बट आई पर्पसली पुट योर, क्योंकि मैं जानता भी हूं और मैं बताना भी चाहता हूं कि इसके बिना भी सेल्स कहीं ना कहीं रुकती है.
So intention and expression, keep in mind. Keep taking notes. It will help you later on. Now let's talk about the neuroscience behind sales. Okay. Can I request everyone? सब लोगों ने कैमरे बंद कर लिए हैं. मुझे एक अनुपम is just visible to me. Everybody is. थोड़ा सा यहाँ लग के मिल के बात ये करते हैं ना तो अच्छा लगता है. If you are comfortable, yeah. मैं कंफर्टेबल है सर, बट थोड़ा पेट को थोड़ा वो कर रही थी, उसका फूड दे रही थी, इसलिए ऑफ कर Okay, लिया था. no problem. So if you can switch on your cameras, that would be good. Okay, so let's talk about the neuroscience behind sales. So neurological sales क्या होता है? It's a sales techniques that focuses on the understanding of a human brain. अब हम लोग बायोलॉजी और मैं आपको केमिस्ट्री तो पढ़ाने वाला नहीं हूँ. मैं बस आपको ये कह रहा हूँ कि ह्यूमन ब्रेन ही डिसीजन लेता है, राइट? और ह्यूमन ब्रेन कैसे डिसीजन लेता है वही न्यूरोलॉजिकल सेल्स है. सो यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग द वे हाउ आवर ब्रेन परसीव्स थिंग्स, राइट? दैट इज कॉल्ड न्यूरोलॉजिकल सेल्स. अब इसमें जैसे मैंने बताना कि कैसे आगे और भी चीजें मैं करूंगा कि हाउ यू यूज टू क्रिएट इमोशनल पॉजिटिव कनेक्शंस, आपके कस्टमर के साथ कैसे कैसे बाकी चीजें करते हैं. दिस इज ऑल रिलेटेड टू द perception our brain analyzes and feel. That is called neurological sales. So number one point is brain makes decision based on emotions, not logic. आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा हमारे ब्रेन का दो पार्ट होता है, एक इमोशन पार्ट, एक लॉजिक पार्ट, राइट? जो डिसीजन मेकिंग होती है ना वो इमोशन से होती है, लॉजिक से नहीं होती है. हैव यू एवर रियलाइज दैट? एनीवन? थोड़ा सा इंटरैक्ट कीजिए तो अच्छा लगेगा, अदरवाइज इट विल बी लाइक अ वन साइडेड लेक्चर व्हिच आई डोंट वांट. हैव यू एवर फील्ड दैट द डिसीजन व्हिच यू टेक इज primarily based on emotions, not logic? Yes? No? Yes. Okay. और क्या होता है, हम इमोशनली डिसीजन लेते हैं, उसके बाद लॉजिकली अपने आप को कन्विंस करते हैं कि हाँ ये लॉजिकली सही है. कभी आपने महसूस किया, कभी आगे कोई भी डिसीजन, हम दिन में 50 डिसीजंस लेते हैं, आप देखेंगे ना जब डिसीजंस लेते हैं तो प्राइमरी डिसीजन का रीजन होता है इमोशन. उसके बाद लॉजिक से हम उस डिसीजन को खुद से क्या उसको बोलते हैं, कवर अप करते हैं कि यार ये सही हमने डिसीजन लिया है, बट प्राइमरली इट इज इमोशन, राइट? मेजोरिटी ऑफ द केसेस में ऐसे ही करते हैं. या प्राइमरली यही होता है. ऐसे नहीं है मैंने रिसर्च किया, दिस हैज बीन रिसर्च ओवर इयर्स, और मैं वहीं से पढ़ के समझ के जो मैंने महसूस किया वही सब चीज मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ. सो दीज आर ऑल प्रूवन थिंग्स जिसको मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि दिस इज हाउ इट वर्क्स. सो हम भी जो डिसीजन लेंगे या हमारे कस्टमर्स जो डिसीजन लेंगे वो प्राइमरी इमोशंस लेंगे, लॉजिक बाद में आता है. और हम लोग ट्राई करना क्या शुरू करते हैं, लॉजिक से बेचने की कोशिश शुरू कर देते हैं, राइट? Which is a wrong approach. So you should be taking care of the emotional part first. अब इसमें मैंने थोड़ा सा, हाँ ये अंशुल जी टेल मी. एक थोड़ा सा आज मेरे साथ इसमें लॉजिक और इमोशंस वाले में थोड़ा सा एक्सेप्शन ये हुआ कि आज मैं मीटिंग में इस वजह से हूँ कि अभी शाम को मेरा एक ऑब्जेक्शन हो गया था विद फैक्ट. तो फिर मुझे लगा कि आपका वो मैसेज देखा कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाली मीटिंग 7 बजे से है, तो आई थॉट कि लेट्स गो इनटू दैट मीटिंग. तो वो चीज जो है वो मेरे लॉजिक की वजह से हुई. अगर वो ऑब्जेक्शन नहीं होता तो शायद इस मीटिंग में नहीं आता मैं. कोई बात नहीं, अभी आपको मैं बताऊंगा कि उसमें भी इमोशन ही है, लॉजिक बाद में आता है. आपको क्लैरिटी होगी, अभी 2 दिन रहिए हमारे साथ, थिंग्स विल बी वेरी वेरी क्लियर टू यू, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा एंड यू विल बी सेइंग यस कि हाँ जो आप सोच रहे थे उसमें क्या चेंज करने की जरूरत है. ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट द लिम्बिक सिस्टम. मैं बोला कि बायोलॉजी में नहीं जाना चाहता, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे ब्रेन में एक लिम्बिक सिस्टम होता है. वो लिम्बिक सिस्टम क्या करता है, हमारे इमोशंस को प्रोसेस करता है और उस प्रोसेसिंग के बाद हम डिसीजन लेते हैं, राइट? सो अंशुल जो कह रहे थे ना कि लॉजिक प्राइमरी था, वो आपको भी ऐसा लग रहा होगा, कोई बात नहीं, लेट्स कंटिन्यू एंड देन यू विल बी कमिंग टू अ कंक्लूजन. अभी कंक्लूड मत कीजिए, मैं बस यही कह रहा हूँ कि हमारा, ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे ब्रेन का कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि ब्रेन में एक लिम्बिक सिस्टम होता है. लिम्बिक सिस्टम क्या करता है, हमारे इमोशंस को प्रोसेस करता है और वो हमारे डिसीजन को आगे लेके जाता है, राइट? सो जब तक हम वो लिम्बिक सिस्टम कैसे काम करेगा या इमोशन कैसे काम करेगा नहीं समझेंगे, हम डिसीजन तक पहुंच ही नहीं सकते. ठीक है. सो वी नीड टू अपील टू द प्रोस्पेक्ट्स इमोशन बाय अंडरस्टैंडिंग देयर नीड्स, डिजायर्स एंड फियर्स, जिसकी हम बात कर रहे थे. वैशाली जी ने भी कहा कि नीड है, पेन है,
डिजायर है तो उसी को नीड, डिजायर, फियर, जो भी नाम दे दीजिए। तो हमें हमेशा भी अपने प्रोस्पेक्ट को अपील करना चाहिए इमोशंस से, राइट। ये इमोशंस के पार्ट है, नीड, डिजायर्स एंड फियर्स, राइट। लॉजिक और रीजनिंग जो होता है ना, वो यूज होता है उस इमोशनल डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए, करेक्ट। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, बट इमोशन इज द प्राइमरी फोकस थिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। सो अब स्टोरीज क्या करते हैं, इमोशंस को कैसे एक्टिवेट करते हैं। सो स्टोरीज क्या करते हैं, हमारे जो ब्रेन के पार्ट्स है ना, जैसे लिम्बिक सिस्टम की मैंने बात करा, उसको वो एक्टिवेट करते हैं, राइट। कैन यू रिलेट टू इट? मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आप मूवी देखते हो? लेटेस्ट कौन सी मूवी देखी है आप लोगों ने? कोई एक नाम बताइए। 3-2। स्त्री 2। उसमें आपने इमोशनली कहीं कनेक्ट किया उस मूवी में अपने आप को किसी कैरेक्टर से? वाइफ मेरी जब नाराज हो जाती है ना, तो उसको मैंने रिलेट किया स्त्री 2 से। जब भी हम कोई कहानी पढ़ते हैं ना या कहानी देखते हैं, मूवी क्या एक स्टोरी है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी कैरेक्टर के साथ हमारा एक इमोशनल कनेक्शन बनता है, राइट। और हम तभी उस चीज को ज्यादा एंजॉय करते हैं। यदि किसी मूवी में वो इमोशनल कनेक्ट नहीं बनेगा ना, तो आप बोलेंगे मूवी बेकार है भाई, राइट। तो यहाँ मैं वही कह रहा हूँ कि इमोशंस को हमेशा ही ऊपर रखना है, और इमोशन के लिए हमें सबसे ज्यादा पार्ट जो हमारे ब्रेन का है, उसको एक्टिवेट करना होता है। और ये जो है ना, इसमें स्टोरीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो स्टोरी टेलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जो सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया, स्टोरी टेलिंग इज वन ऑफ दोज की स्किल्स through which we activate the parts of the brain which are responsible for emotion, imagination and memory, right? मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा। यदि आपने कोई पुरानी मूवी देखी हो, जैसे मान लीजिए मैं नाम लूं डीडीएलजे का। डीडीएलजे सबने देखी होगी, देखी है सबने? होपफुली यस। Yes, yes, thousands time, more than 1,000 times. आपने शोले भी देखी होगी, यदि देखी हो तो। हाँ हाँ, 100 वैसे and 1. वैसे बहुत सारी मूवीज हैं। अब क्या होता है, जब हम स्टोरीज देखते हैं ना, तो उस वो इतनी पुरानी मूवी भी हो गई है, लेकिन हम उसको याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक स्टोरी है कि नहीं? तो स्टोरीज हमारे दिमाग में ज्यादा देर तक रहते हैं। इसी वजह से इफ यू सी एवरी एड विच यू सी इज अ स्टोरी। चाहे छोटा बच्चा वो, आप देखेंगे ना, वॉशिंग पाउडर का, किसी भी सर्फ का या किसका, मम्मी मम्मी कपड़े गंदे हो गए हैं, मम्मी कहती है नहीं नहीं ये तो बस एक धुलाई में साफ हो जाएगा। क्या है? एक स्टोरी है। एवरी एड इज अ स्टोरी, राइट। और हम उस स्टोरी से रिलेट करते हैं, करेक्ट। क्या है वो? इमोशन है ना। सो कोई भी कंपनी जो ऐड बनाती है वो आपको इमोशनली कनेक्ट करती है, और कुछ नहीं है। जब तक आप इमोशनली ट्रिगर्ड नहीं होंगे, आप देखिए, मैं हमेशा एग्जांपल देखो मैगी का, 2 मिनट, मम्मी भूख लगी है, 2 मिनट, मैं गारंटी देता हूँ 2 मिनट में मैगी नहीं बनती। राइट। 2 मिनट बॉयल होने में पानी लग जाएगा, लेकिन उसके टर्म्स कंडीशन ऐसे होते हैं कि जब पूरा बॉयल हो जाएगा उसके बाद आप डालोगे तो 2 मिनट में बनेगा। हकीकत है कि आप मैगी भी बनाइएगा तो कम से कम 5-7 मिनट तो लगते ही लगते हैं। बट वो एक इमोशन है, एक स्टोरी है कि 2 मिनट का मतलब मैगी ही दिमाग में आता है ना। सो दैट इज एन इमोशन विच इज कनेक्टिंग अस, एंड वी रेफर दैट थिंग एंड वी बाई। ओके, सो स्टोरीज की मैं बात कर रहा था। स्टोरी टेलिंग इज वन ऑफ दोज की स्किल्स। Now, coming to here, stories help to create an emotional connection between the salesperson and the prospect. जो सेल्स वाला बंदा है, चाहे हम एज ए कोच भी हैं, जब हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस की बातें करते हैं तो हम लोग एक सेल्स पर्सन बन जाते हैं। तो हमारे और हमारे प्रोस्पेक्ट के बीच भी जो कनेक्शन बनता है वो स्टोरीज के थ्रू ही बनता है, राइट। और स्टोरीज कैन बी यूज टू इलस्ट्रेट हाउ अ प्रोस्पेक्ट, राइट, और अ प्रोडक्ट कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। जो भी आपकी नीड है या आपकी प्रॉब्लम है, उसको कैसे आप स्टोरी के थ्रू इलिस्ट्रेट कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड पार्ट ऑफ स्टोरी। ठीक है। सो स्टोरी टेलिंग यू शुड बी यूटिलाइजिंग इन योर डे टू डे एक्टिविटी, बिकॉज दैट इज वन ऑफ दोज मोस्ट पावरफुल टेक्निक टू डू सेल्स एक्चुअली एंड बिल्ड ट्रस्ट एज वेल। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ एम्पैथी। Empathy is what? Empathy is putting yourself in the prospect shoes and understanding their emotions. अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बताऊं,
अनुपम ने and अंशुल जी ने मेरे से बात करी, they were trying to sell me the pen, right? उस पेन को बेचने के लिए कहीं ना एम्पैथी थी, नहीं ना कोई स्टोरी थी, राइट? इट वाज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट बेनिफिट्स एंड द एडवांटेजेस, राइट? है ना? यू पीपल माइट हैव सीन दैट, इसीलिए मैंने कहा कि वन बाय वन मैं इन सब चीजों को कवर करता रहूंगा. सो देयर वाज नो एम्पैथी, देयर वाज नो स्टोरी टेलिंग, देयर वाज ओनली व्हाट प्रोडक्ट बेनिफिट्स मे बी द एडवांटेजेस. ठीक है? सो एम्पैथी क्या होता है? अपने आप को कस्टमर के शूज में रखना, उनकी चीज को समझना. आपने बिना समझे मुझे बेचने की कोशिश करी, राइट? वो उसमें बिकना होगा ही नहीं, सेल्स होगा ही नहीं, राइट? नाउ एम्पैथी का एक और पार्ट होता है एक्टिव लिसनिंग. एक्टिव लिसनिंग एंड आस्किंग द राइट क्वेश्चंस. आपने देखा, अगेन आई विल बी गिविंग एग्जांपल, कि जिन दो लोगों ने मुझे पेन बेचने की कोशिश करी, ना उन्होंने मेरे से कुछ पूछा, ना उन्होंने मेरी कुछ सुनी. दे वर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट. एम आई राइट और रॉन्ग? है ना? सो एम्पैथी का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है एक्टिव लिसनिंग एंड आस्किंग द राइट क्वेश्चंस. ठीक है? यदि आप सुनेंगे नहीं, राइट क्वेश्चंस पूछेंगे नहीं, तो एम्पैथी डेवलप ही नहीं हो पाएगी और सारी की सारी चीजें रह जाएंगी वैसे ही वैसे ही. So empathy helps to build trust and create a positive buying experience for your audience, for your prospect, right? Empathy, ठीक है? Clear हुआ? Empathy, putting yourself in the customer's shoes, asking the right questions, active listening, and then building a trust, and obviously a positive buying experience. Let's talk about priming. Priming आपके बारे में सुना है किसी ने पहले? Priming word बहुत सिंपल है. Yes, क्या होता है priming? it's about setting up, one point. जैसे कि आपका सेलिंग कुछ आप कर रहे हैं, तो एक प्राइस पॉइंट उनको या मतलब कोई भी चीज के लिए बोल सकते हैं, प्राइस आई एम यूजिंग हियर, उनको सेट कर देना उनके दिमाग में, वेयर दे कैन नाउ ऑनवर्ड्स देयर थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट. जब आप उसके बाद जब कम प्राइस में कोई चीज दोगे, कुछ करोगे, तो दे विल फील मोर एडवांटेज ऑन इट. ओके, मैं आपको अगेन देसी तरीके से समझाता हूँ. आपने कभी घर में पेंट करा है? पेंटर को काम करते हुए देखा है घर में? या फर्स्ट प्राइमर करते हैं वो लोग. क्या करते हैं? प्राइमर करते हैं. एग्जैक्टली. वो प्राइमर क्या होता है? पहले तो खरोचते हैं, पुराने वाले पेंट को खरोचते हैं, उसके बाद प्राइमिंग करते हैं. प्राइमिंग का मतलब क्या करते हैं? उसके ऊपर वो पुट्टी लगाते हैं या कोई केमिकल लगाते हैं ताकि उसको प्लेन कर सके. पूरा प्लेन करते हैं, बाद में पेंट करते हैं, राइट? करेक्ट. So before giving the final finish or the paint or the color, they make it clear and smooth, right? That is priming. So sales में भी हमें वही करना पड़ता है, priming करनी पड़ती है. And if you can do priming well, your sales would be better. So priming क्या होता है? Priming में हम अपने prospect को influence करते हैं through a personal behavior so that their decision is already there in our favor. राइट? सो हम लोग कुछ यूज करते हैं, कुछ क्यूज यूज करते हैं सो दैट द पर्सन इज इन्फ्लुएंस्ड, राइट? सो प्राइमिंग का ये काम होता है इन्फ्लुएंस करना. ठीक है? क्योंकि डिसीजन मेकिंग की तरफ हम जा रहे हैं. पॉजिटिव लैंग्वेज, टेस्टिमोनियल्स एंड इमेजेस जो हम लोग सोशल मीडिया पे करते हैं, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, अगेन these are the things which evoke the positive emotions so that the priming is done to the prospect. prospect क्या है? डिसीजन लेने जा रहा है, उसके पहले हम उसको लिटरली हमने खरोच दिया उसकी पुरानी मेमोरीज को, उसके बाद हमने उसके ऊपर लेप लगाया, वो पुट्टी का हो चाहे फिर टेस्टिमोनियल्स का हो चाहे पॉजिटिव चीजों का हो, और हमने उसको प्राइम किया, राइट? सो ऑल दिस थिंग्स पुट टुगेदर आर कॉल्ड प्राइमिंग which will have the help the prospect to take a decision in our favor, right? So priming क्या करता है? एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है प्रोस्पेक्ट के माइंड में, ताकि आपके सेल की प्रोबेबिलिटी बढ़े, लाइकलीहुड बढ़े, राइट? सो ये होता है प्राइमिंग. ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रस्ट इन सेल्स. मैं कहता हूं हमेशा कि बिना ट्रस्ट के सेल्स तो होता ही नहीं है, बिकॉज द प्रोस्पेक्ट्स नीड्स टू बिलीव दैट यू हैव द बेस्ट इंटरेस्ट एट हार्ट. मैंने आपको बताया ना, पीछे मैंने 2 पॉइंट्स बताए थे, इंटेंशन एंड इंप्रेशन. आपके प्रोस्पेक्ट को लगना चाहिए कि यू आर अ पर्सन हु हैज बीन द बेस्ट वेल विशर फॉर देम. बेस्ट इंटरेस्ट है आपके हाथ में, ये नहीं कि आए और पैसा लेके चले गए. जैसे उसको फील होगा कि आप उनके पैसों के पीछे हो, वो भाग जाएंगे, है ना? सो योर
prospect should be believing in you, और वो ट्रस्ट से ही होता है, करेक्ट? और ट्रस्ट कैसे होता है? योर इंटेंशन, फिर से वही बात आ जाती है यहाँ पे, है ना? उसके बाद ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी एंड रिलायबिलिटी, ये ट्रस्ट की तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी हम देखते हैं, हमारी पर्सनल लाइफ है, हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, वहां भी हमें ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी और रिलायबिलिटी रखना ही पड़ेगा ताकि हम ट्रस्ट को बिल्ड कर सके। एक्चुअल ट्रस्ट वही होता है जहां पे आप ऑनेस्ट हो, वहां पे अननेसेसरी कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है जो आप नहीं हो, गलत हो या सही हो, बी ट्रू टू योर सेल्फ, बी ट्रू टू योर प्रोस्पेक्ट, बी ट्रू टू योर क्लाइंट, बी ट्रांसपेरेंट, वल्नरेबल एंड रिलायबल, ताकि उनका ट्रस्ट आपके ऊपर बना रहे, ठीक है? एंड जो मैंने बोला, ट्रस्ट एक दिन में नहीं बनता, ट्रस्ट इज बिल्ड ओवर टाइम थ्रू योर कंसिस्टेंट बिहेवियर एंड पॉजिटिव इंटरेक्शन। एक बार में ट्रस्ट नहीं बनता। मैं हमेशा कहता हूं कि आप पहली डेट में किसी को प्रपोज नहीं करते हो, या पहली बार में जा करके सीधे कार नहीं खरीद लेते हो, पहले से पूरा रिसर्च करके आते हो, तो वो ट्रस्ट पहले से बिल्ड होता है। जैसे जैसे ट्रस्ट बिल्ड होता है वैसे वैसे जा करके हमारी चीजें बढ़ती हैं, राइट? एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन डिसीजन मेकिंग। अब आप कहेंगे डिसीजन मेकिंग पे स्ट्रेस का क्या रहता है? स्ट्रेस एक ऐसा चीज है जो आपके फ्लाइट और फाइट मोड को एक्टिवेट करता है। कई बार आप देखते होंगे ना, आप कहते हैं कि इम्पल्सिव बाइंग होती है। इम्पल्सिव बाइंग क्या होती है? कुछ ऐसे माहौल क्रिएट हो जाते हैं जो बड़े बड़े कोचेस करते भी हैं, वो आपको इतना, जैसे आप किसी फिजिकल इवेंट में जाइएगा ना, तो जब वो पिच करेंगे वो इस तरह से माहौल बनाएंगे, आपको लगेगा कि यार मैं को नहीं खरीदूंगी तो मैं गलत हो जाएगा, यार खरीदूंगा तो। कभी ऐसे महसूस किया है आपने? है ना? यस वैशाली जी, बिल्कुल सही। सो ये क्या होता है? ये स्ट्रेस बेस्ड डिसीजन होता है। आपको स्ट्रेस किया गया डिसीजन लेने के लिए, है ना? आपको लगता है कुछ छूट जाएगा, तो दिस इज नॉट अ राइट अप्रोच, बट स्ट्रेस कैन डेफिनेटली अफेक्ट योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, राइट? एंड स्ट्रेस ऑल्सो कैन मेक पीपल मोर कॉशियस एंड रिस्क एवर्स, राइट? और यही होता है जो वो इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं स्ट्रेस की वजह से। कुछ छूट जाएगा, ऐसा लोग बोल रहे हैं, यार इतने सारे लोग खरीद रहे हैं, मैं नहीं ले रहा हूं, मैं नहीं ले रही हूं, तो आई विल बी मिसिंग और समथिंग, राइट? सो द रिजल्ट इज व्हाट? as a salesperson, as a coach, we need to create a positive and relaxed environment to reduce stress, right? ताकि हम अपने कस्टमर को एक पॉजिटिव बाइंग एक्सपीरियंस दे दे, न कि स्ट्रेस क्रिएट करके दे, ठीक है? एंड yes, this is done. Now let's talk about the sales steps pertaining to neuroscience. Okay, so ये जो 6 पॉइंट मैंने आपको बताए, जिसमें ये सारी चीजें हमें, ये सारा क्लियर हुआ आप लोगों को? ये जो न्यूरोलॉजिकल सेल्स की मैं बात कर रहा था, जिसमें मैंने ब्रेन के बारे में बात करी, देन आई टॉक्ड अबाउट स्टोरी टेलिंग, देन द थर्ड पॉइंट वाज इंपॉर्टेंस ऑफ एम्पैथी, देन आई टॉक्ड अबाउट रोल ऑफ प्राइमिंग, देन वाज इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रस्ट, and then impact of stress. Now I'm going to cover the next point, which is 7 sales steps pertaining to neuroscience. ये जो मैंने आपको थियरी बताई, इसको सिंपल 7 स्टेप्स में कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, दैट आई एम गोना कवर, राइट? ठीक है? इज एवरीबॉडी एंजॉयिंग? यस, नो? कोई कुछ बोल ही Yes. नहीं रहा? यस, थैंक्स अनुपम, वैशाली जी, जयती जी, यस Yes, of course. अवनी, या गुड, थैंक यू सो मच। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। सबसे पहला, इन्फ्लुएंस। आपको इन्फ्लुएंस को यूज करना है टू ड्राइव वैल्यू। अब इन्फ्लुएंस के ऊपर बड़ी बड़ी बुक है, और इफ आई टेल यू, मैं ये बुक दूसरी बार पढ़ रहा हूँ, आई डोंट नो वेदर आई हैव शेयर्ड विथ यू और नॉट। दिस इज अ बुक ऑन इन्फ्लुएंस बाय रॉबर्ट बी कैल्डिनी। इट इज अ लाइक वर्ल्ड्स वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग बुक। इसके कितने मिलियन कॉपीज, ओवर 5 मिलियन कॉपीज हैव बीन सोल्ड। So this is a book on influence. So you should be understanding how to influence to drive value. अब इन्फ्लुएंस मेरा अभी टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं इन्फ्लुएंस के बारे में बात नहीं करूंगा, बहुत बड़ा टॉपिक है इन्फ्लुएंस। सो द फर्स्ट पार्ट इज यूज इन्फ्लुएंस टू ड्राइव वैल्यू। सेकंड इज सेल योरसेल्फ बिफोर सेलिंग अ सर्विस। आपने सुना होगा, पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट और सर्विस, पीपल बाय यू फर्स्ट। सो यू हैव टू सेल योरसेल्फ फर्स्ट बिफोर सेलिंग योर सर्विस। लोग आपको खरीदेंगे क्योंकि आपके जैसे और हमारे जैसे 50 नहीं, 500 नहीं, 1000, 500, 5000, 5 लाख लोग हैं, है ना? वहां पे आपने अपने आप को कितना अच्छे से सेल किया है, जितना अच्छे से आपने अपने आप को सेल करेंगे, उतना अच्छा आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे। सो सेल योरसेल्फ बिफोर सेलिंग अ सर्विस। थर्ड, बिल्ड इंटरेस्ट एंड डिजायर विद फीचर्स एंड बेनिफिट्स। इंटरेस्ट क्रिएट करना होता है, एक सेल्स का एक छोटा सा पहलू है जिसमें
आप फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। उसके बाद सेल द रिजल्ट, डोंट सेल द प्रोडक्ट फीचर्स एंड बेनिफिट, सेल द रिजल्ट्स, ठीक है। एंड यूज ट्रस्ट एंड एक्सपर्टीज टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी। ट्रस्ट और एक्सपर्टीज दोनों में हमेशा कहता हूं, ट्रस्ट बिल्ड होता है इमोशन से और एक्सपर्टीज बिल्ड होती है आपके एक्चुअल प्रोफेशनल जो सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट है उससे। इन दोनों को मिला करके आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है कि यस यू आर अ गुड पर्सन, योर इंटेंशन आर गुड एंड यू आर कैपेबल ऑफ हेल्पिंग समबडी, यू हैव दैट एक्सपर्टीज। तो दोनों मिला के क्रेडिबिलिटी बनती है, राइट। एंड सेल्स इज ऑलवेज अ गिव अप रिलेशनशिप टू कस्टमर्स। सेल्स हमेशा गिव एंड गिव होता है, जितना ज्यादा दीजिएगा उतना ज्यादा आपको मिलेगा, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्टॉप सेलिंग टू क्लोज इवन मोर सेल्स। आपको सेल करने की जरूरत ही नहीं है यदि आपको सेल करना है। सो दिस इज, यू माइट बी फीलिंग ये क्या बोल रहा हूं मैं, स्टॉप सेलिंग टू क्लोज इवन मोर सेल। सो व्हाट यू नीड टू डू, बिना सेलिंग किए हुए सेल कैसे होगा? एनीबडी? I am saying stop selling to close even more sales. What does it mean? It's not pushing but influencing more and more. Yeah, actually इसका थोड़ा मैं सिंपल और कर दूं, मैं इसको सीधे कहता हूं कि स्टॉप सेलिंग, स्टार्ट सर्विंग, स्टार्ट सर्विंग टू क्लोज इवन मोर सेल्स। सिंपल यही है। सो दीज आर फ्यू ऑफ द पॉइंट्स जो मैंने किया, ये जो आपको मैंने बताया 7 स्टेप्स, 7 सेल्स स्टेप्स पर्टेनिंग टू न्यूरो साइंस, ये सारा न्यूरो साइंस बेस्ड है। यूजिंग इन्फ्लुएंस, selling yourself, building trust and desires, selling the results, using trust and expertise, and obviously giving and giving all the time, and start serving, stop selling to close even more sales. Is it clear till now? Are we in time? Yes, we are in time, I believe. अभी 1 घंटा हुआ है and we are going to close in max half an hour or so. ठीक है, so enjoy कर रहे हैं आप लोग? ठीक लग रहा है? Okay, Yes, yes. good. Let's move on to next step. So now what are the newer ways of sales? अब तो सेल्स इतने टाइम से आप लोग सुन रहे हो, देख रहे हो, क्या है आज के डेट का नया सेल्स का क्या फंडा है? फोकस ऑन द मोटिवेशंस। जो क्लाइंट को मोटिवेट करता है उसके ऊपर फोकस करना है हमें। प्रोडक्ट के फीचर्स, बेनिफिट्स और फलाना ठिकाना ये सब तो हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं। आज के डेट में इफ यू वांट टू सेल मोर यू हैव टू फोकस ऑन द मोटिवेशंस। व्हाट इज मोटिवेटिंग योर प्रॉस्पेक्ट टू टेक अ डिसीजन? व्हाट इज मोटिवेटिंग योर क्लाइंट्स टू डू समथिंग? करेक्ट? सो दिस इज वन ऑफ दोज की फीचर्स ऑफ nowadays selling. Second, respect their decision making process. पुश नहीं करना है, वो जो डिसीजन लेंगे बहुत सोच समझ के ले रहे हैं। कोई भी बच्चा नहीं है, कोई बुद्धि वो नहीं है जिसको आप जिसको कहते हैं ना हम लोग बेवकूफ बनाने वाली टेंडेंसी नहीं है। पहले होता था, आज भी कुछ लोग करते हैं, दैट्स ओके, बट यू शुड बी मेकिंग देम, यू शुड बी रिस्पेक्टिंग देम फॉर देयर डिसीजन, है ना। तो एक रिस्पेक्ट होना चाहिए, दैट इज द न्यू वे ऑफ डूइंग सेल्स। देन क्रिएट स्पेस फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। वो डिसीजन ले रहे हैं, उनको सेल्फ रियलाइज होना चाहिए कि दिस इज फॉर देम। यदि उनको लगेगा नहीं कि ये उनके लिए है, तो आपके फोर्स करने से वो डिसीजन ले भी लें कुछ टाइम के लिए तो फिर वो चलेगा नहीं, राइट? ओके, सो ट्रस्ट देयर इनर वॉइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट्स देयर इनसाइड देयर वॉइस। उनके अंदर क्या है, वो जब तक आप नहीं समझ पाइएगा ना तब तक आप सेल नहीं कर पाइएगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, नो एंड देन ट्रस्ट देयर इनर वॉइस। बहुत सारे लोगों के इनर वॉइस होते हैं। नाउ अगेन आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट। डिसीजन मेकिंग के बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं लोगों के मन में, उनके इनर वॉइस को आप ट्रस्ट कीजिए कि यस whatever you're thinking definitely would be right and it is your process, I accept it and appreciate it. ये नहीं कि नहीं ये आप क्या सोच रहे हो तो गलत है, गलत नहीं बोलना है, उनके इनर वॉइस को रेस्पेक्ट करना है, ट्रस्ट करना है। एंड एलिमिनेट एनी एक्सटर्नल प्रेशर, प्रेशर नहीं देना है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग सिखाते हैं कि भाई आप अर्जेंसी क्रिएट करो, स्कैरसिटी क्रिएट करो टू सेल मोर। आपने सुना होगा ये दोनों वर्ड्स, है ना, कि ऑफर में ये होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए, बट उसको भी करने का एक सटल तरीका होता है। यू शुड बी अवॉइडिंग एनी एक्सटर्नल प्रेशर टू डू सेल्स। दैट्स द बेस्ट वे ऑफ डूइंग सेल्स। यस यू कैन अर्न लिटिल मोर मनी बाय यूटिलाइजिंग दोज प्रेशर टैक्टिक्स, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं चलता है।
right? Now let's talk about the keys to effective selling in 2025. 2025 आ रहा है. Let's talk about it. What are the keys to effective selling in 2025? Number one, help people to make decisions they already desire to make. आप समझ रहे हो ये चीज कितना इंपॉर्टेंट है? Help people make decisions they already desire to make. उनको डिजायर है, आपको बस उनको हेल्प करना है डिसीजन लेने में, राइट? दिस इज अ न्यू वे ऑफ डूइंग सेल्स इन 2025, राइट? आपको फोर्स Sir. नहीं करना है. हाँ, यस अनुपम, टेल मी. उनका जो डिजायर होगा उसको हम कैसे पता लगाएंगे? उसके लिए कोई अलग से क्वेश्चनर रहेगा? मैंने बोला ना, हमें क्वेश्चन पूछना है और कुछ नहीं करना है. अवनी, आप कुछ कह रहे हो मुझे? आपकी आवाज नहीं आ रही अवनी. नहीं, आवाज नहीं आ रही है. कैन यू रिकनेक्ट? नहीं, वो माइक का लगाया हुआ था, दैट्स वाई. हाँ, अभी आ हाँ, रही है? हाँ, अभी आ रही है. यस. जी, तो आई वाज सेइंग आई एम अ वेलनेस कोच. तो मेरे केस में कैसा होता है, हील डिप्रेशन वो मेरा नीश है. अभी कई बार कैसा होता है कि क्लाइंट है, उसको डिजायर है कि मुझे डिप्रेशन ओवरकम करना है, और बट उनको ऐसा है कि मैं तो कैपेबल नहीं हूँ डिसीजन लेने के लिए कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं तो खुद ही डिप्रेशन में हूँ, स्ट्रेस में हूँ, एंग्जाइटी में हूँ. राइट. तो ऐसे केस में क्या करें? मैं बोला ना, उनका डिजायर है, उनका पेन नहीं है ये, राइट? तो डिजायर और पेन में ये तो फर्क है. जिस दिन उनको लगेगा कि ये उनका पेन है और उनको उससे उसको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है या कुछ नहीं कर पा रहा है, लेट्स से बिकॉज ऑफ डिप्रेशन, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बिकॉज ऑफ डिप्रेशन इफ ही और शी इज नॉट एबल टू परफॉर्म वेल इन द ऑफिस, और या घर के लोगों से उनका रिलेशनशिप नहीं हो रहा है, तो विल इट बी अ पेन? इफ इट वुड बी अ पेन, देन they'll immediately take a decision. जब तक वो पेन नहीं है ना, तब तक वो डिसीजन नहीं होगा. नहीं, पेन है, उनको पता है कि मुझे घर पे ये प्रॉब्लम हो रहा है, रिलेशनशिप में मैं सफर कर रही हूँ, मेरे ऑफिस का परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रहा है, ये सब पता है. बट राइट. जब इन्वेस्ट करने की बात आती है तो उनको लगता है कि वो राइट फिट नहीं है ये राइट. फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि उनका मेंटल हेल्थ स्टेबल नहीं है. करेक्ट. तो इसके लिए आपको उनको उस पेन को आपको बताना पड़ेगा विथ नंबर्स कि वो क्या मिस कर रहे हैं, दे आर नॉट टेकिंग अ डिसीजन टू ओवरकम दैट. यदि आप उनको एहसास नहीं कराएंगे कि अच्छा, आप सिंपल एक क्वेश्चन पूछिएगा उनसे. एक क्वेश्चन, चलिए अभी तो हम लोग कल इसको रोल प्ले भी करेंगे, बट आई एम जस्ट गिविंग यू वन टिप. यू जस्ट आस्क वन क्वेश्चन सेइंग कि would you like to stay in the same condition for, let's say, 2 months, 3 months, 6 months, 1 year, or what is the time you can, जिसको कहते हैं खींच सकते हो इसी कंडीशन को, अभी ये जरा बताना. राइट. Let them feel that. ओके, एंड इट कुड बी वर्सन एज वेल. अभी ये उससे बेटर ना हो, खराब भी हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है, वही होता ही एक्चुअली. इफ यू आर इन अ डिप्रेशन एंड यू आर नॉट टेकिंग एनी क्योर फॉर दैट, वो तो वर्स ही नहीं होगा ना, वो सही नहीं होने राइट. वाला, वेरी राइट? ट्रू. तो एक बार आप ये बस क्वेश्चन, मैं बोला ना कि सेल्स इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग एंड आस्किंग राइट क्वेश्चंस. मैंने राइट. आपको सिर्फ एक क्वेश्चन बोला. वही होता है, कुछ लोग क्या, हस्बैंड है, ब्रदर है, फैमिली मेंबर है, वो बोलते हैं कि मेडिसिन लो, साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, दे ना कि आप ऐसा कुछ कोचिंग लो. और उसके बाद वो लोग वापस भी आते हैं दवाई की साइड इफेक्ट की वजह से, कि हेडेक होता है, नींद नहीं आती है, ज्यादा नींद आती है. बट उस टाइम पे फिर क्या होता है कि वो लोग मेडिकेशन पे है ना, तो उनको लेना मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ऐसे ही किसी की मेडिसिन आप बंद नहीं कर सकते. राइट. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, अगेन मैंने बोला ना कि जो हमारी एक्टिव कम्युनिकेशन है ना हमारे क्लाइंट के साथ, वो हमें ऐसे करनी होगी ताकि उनको समझ में आए कि इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है. आप सिंपल एक कंटेंट बनाओ इस तरह के, मतलब सिमिलर कंटेंट सेइंग कि इफ यू आर डिप्रेस्ड एंड यू आर रिलाइंग ओनली ऑन मेडिसिन, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होंगे, आपको नींद नहीं आएगी, एंग्जाइटी होगी, ये होगा, वो डिप्रेशन थोड़े टाइम के लिए खत्म होगा, लेकिन उसके साथ साथ इतनी सारी चीजें आएंगी. विल यू बी एबल टू अफोर्ड दैट कि एक चीज खत्म करे या दूसरी चीज हमने वापस से पाल लिया, हाँ. है ना? राइट. सो व्हेन वी टॉक इन दैट लैंग्वेज ना, जो कस्टमर को लिटरली दिल पे लगे, वही लैंग्वेज हमको बोलना ही है ना. देन दे विल बी टेकिंग इमीडिएट एक्शन, देन दे विल बी टेकिंग अ डिसीजन कि नहीं यार, अब तो नहीं बर्दाश्त हो रहा, यार ये कैसे कितना दिन झेलेंगे, है ना? सो राइट. again, what I said is कि we need to learn to ask the right questions, because of which the prospect, first of all,
feels connected, number one. And second, they are more likely to take a decision. वो डिसीजन लेने वाला क्वेश्चन हमें आना चाहिए पूछने के लिए ना. Right. True. Good. I answered your question, Avini? Yes, satisfactory. Yes. Thank चलो. you. So we have to help people make decisions they already desire to make, है ना? Then let them recognize their own need. ऐसा यदि उनको अपना नीड ही नहीं होगा तो आप उनको जबरदस्ती नहीं कर सकते, है ना? उनको लगेगा कि यस दिस इज माई नीड एंड आई वॉन्ट टू एक्ट. यदि मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे इससे बाहर निकलना है, तभी वो जाके एक्शन लेंगे. आप उनको थोड़ा सा एग्रीवेट कर सकते हैं, बट इट इज देयर फीलिंग to act or not. So they need to recognize on their own. That's it. So we need to again ask questions in such a way that they feel that this is required for them. Right? Then give them insights, not instructions. हम लोग instructions बहुत देते हैं. हमें instructions की जगह insights देना है कि ये करने से ये होगा. ये नहीं कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो. आपको क्या चाहिए? आपको ये चाहिए कि you want peaceful sleep? Yes. You want to get out of the medicine? Yes. So these are not instructions. These are insights. आप समझ रहे हो दोनों में फर्क? Okay. Then watch their excitement build naturally. है ना? उनका जो excitement है, when you talk, make them so excited, build this excitement so naturally that they automatically say, yes, we want this. Yes, this is the best solution for me. Once you reach this stage, फिर आपको ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी कम हो जाता है. फिर ऑब्जेक्शन अपने आप ही कम हो जाएगा. आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाला जो स्टेज है ना, वो आपका मतलब 2 मिनट में 5 मिनट में खत्म हो जाता है ना? ओके, सो वी हैव डन दिस keys to effective selling in 2025. Now I'm going to talk about the framework of a sales call. कि normally हम लोग जो sales call करते हैं उसका एक framework मैंने बना रखा है. Again, disclaimer, you need to understand how to use it. मैं इसमें एक छोटा सा आपको instruction दे रहा हूँ ताकि whenever you go on a call, you need to take a note of this कि इसको mind में रख के ऐसे काम करना है ना? But you need to customize it based on your prospect and based on your niche. Correct? ठीक है? So, number one, what you need is a Zoom, a high-speed internet, and a qualified prospect on the call. When I say qualified prospect, again, qualifying का बहुत सारे process है. I'm not going to talk about this. This is not a subject here. Qualifying का मतलब you need to understand whether, जैसे आपने बोला ना उन्हीं की वो decision लेने के लायक नहीं रहते या कहते हैं हम decision ही नहीं ले सकते हैं. If somebody is not able to take a decision, then they are not your qualified clients. So you have to, maybe you need to ask them who is the person next who is going to take a decision on your behalf. Bring them on a call together. है ना? Otherwise it's an unqualified lead. है ना? मतलब बातें कर लेंगे उसके बाद डिसीजन की बात होगी, बोले यार मैं तो डिसीजन ही नहीं लेंगे, तो फिर it is not a qualified lead. Okay, next. The success mantra is you have to ask the right question at the right time with the right approach. मैं बार बार यही कह रहा हूँ ना कि asking question is the key. Correct? And always remember 80-20 rule. You only need to speak 20%. बाकी आपको 80% क्लाइंट से पूछना है. Wherein in this case, जैसे आपने देखा अनुपम and अंशुल जी both were there. They were just talking and talking and talking. They didn't ask me anything actually. Right? So you should create such an environment that the prospect should say, yes, I'm there with you. आपको क्लोज नहीं करना, वो खुद बोलेंगे हाँ मेरे को चाहिए, I want to work with you. That is the level of sales which you need to do. Correct? Correct. Now let's start with the steps. Start with the call where your audio and video is off. Let the prospect join. क्योंकि हम लोग Zoom call की बात करते हैं जब हम ऑनलाइन कोचिंग और फ्रीलांसिंग की बातें करते हैं. Let the prospect join and उसके बाद आप वीडियो ऑन करते हो, उसके बाद आप सराउंडिंग्स को नॉइज फ्री रखते हो और उनको वेलकम करते हो. दिस इज द फर्स्ट स्टेप, राइट? द सेकंड स्टेप इज बिल्ड रैपो, फ्रेंडलीनेस एंड अथॉरिटी. दिस इज द फ्लो. रैपो बिल्ड करना है, फ्रेंडलीनेस करना है, अथॉरिटी करना है. अब रैपो कैसे बिल्ड करना है, ये भी जैसे मान लीजिए आप किसी अनजान आदमी से मिलते हो पहली बार, तो क्या क्या बातें करते हो, कैसे हो आप, कहाँ से हो, ये नॉर्मल चीजें हैं. कोचिंग में थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ गया क्योंकि ये भी बहुत चीजें कॉमन हो गई हैं. सो यू शुड बी रिसर्चिंग योर क्लाइंट लिटिल बिट अर्लियर, सेइंग
हे लेट्स से इफ आई आस्क अबाउट अवनी को मैं बोलूंगा अवनी आई सॉ वन ऑफ योर पोस्ट वेयर यू वर टॉकिंग अबाउट समथिंग, इट वाज रियली नाइस, राइट? What was your purpose behind creating that kind of a content? So from there you build a rapport because you have shown interest in the prospect, right? Then coming to the friendliness, you talk about, okay, let me know about your family, who all are there, kahan rehte ho, kaisa karta hai, thoda sa friendliness. And then authority, you say, okay, I'll be asking you a few questions because this is a call where I need to know more about you. Unless and until I know, how would I give you a solution, right? तो ये एक फ्लो होता है, रैपो, फ्रेंडलीनेस एंड अथॉरिटी. इफ यू स्टार्ट विद दिस, योर सेल्स कॉल इज गोना मोर लाइकली गेट matured. Let's talk about now stage 1. अनुपम वाज आस्किंग कि कोई सेट क्वेश्चंस हैं क्या? तो मैं बताऊं, ये क्वेश्चंस मैंने खुद बनाए हैं और ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको यही क्वेश्चंस पूछने हैं, बट मोर लाइकली यू नीड टू ट्वीक इट इन योर लैंग्वेज कि स्टेज 1 में आपको क्या पूछना है. जैसे इफ समबडी इज ऑन द कॉल, you know why the person is on a call, right? लेकिन आप उनसे पूछिए कि what was the reason you booked the call with me, तो क्या आंसर आएगा? I wanted to have a solution. मेरे को ये प्रॉब्लम है. लोग प्रॉब्लम के लिए ही तो आते हैं, प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए तो आते हैं एक्चुअली, राइट? So the person is automatically agreeing that the person has a problem, right? And they have come to you because they know you have a solution. So agenda clear हो गया कि उनको प्रॉब्लम है, आपके पास सोल्यूशन है. सेकेंड क्वेश्चन, वेयर आर यू एट? अभी आप कौन से स्टेज पे हो, है ना? जो भी है, जिसका भी है, निश के हिसाब से वेयर आर यू एट, एंड क्या चैलेंजेस हैं जो आपके हैं, उसको आपने चैलेंज को रिजॉल्व करने के लिए क्या किया अभी तक, है ना? और इसके प्रोबेबल रीजंस क्या है आपके हिसाब से. सो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर ओनली आस्किंग क्वेश्चंस एंड यू आर गेटिंग आंसर्स फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट, राइट? So this is stage 1 of asking this kind of a questions. Stage 2, where do you want to be? आप क्या चाहते हो, है ना? Let's say if somebody is highly depressed, तो क्या चाहेगा कि यार मैं डिप्रेशन से फ्री हो जाऊं, मैं थोड़ा सा अच्छी जिंदगी जीऊं, मैं फैमिली के साथ अच्छा टाइम व्यतीत करूं, या मैं ऑफिस में अपने बॉस के साथ, या मेरे को ग्रोथ अच्छी हो, हाइक अच्छी हो. यही चाहते हैं ना हर कोई, राइट? तो आप वो पूछते हैं. सो आप उनके डिजायर्स को एग्रीवेट करते हैं एक्चुअली, है ना? Then what is the gap between your current situation and the desired situation? आप जो चाहते हो और अभी आप हो, उसमें क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये है कि जी मैं डिप्रेशन में हूं, मेरे को ये समझ नहीं आता, या मैं फोकस नहीं कर पा रहा, एंड फलन. दे विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चंस. फिर आपने कहा कि व्हाई हैव यू चूजन दिस गोल ओनली? आपका गोल क्या है? जैसे आपने कहा कि आपका गोल है कि मेरे को डायरेक्टर बनना है या सीनियर मैनेजर बनना है, अभी आप एक मिडिल लेवल पे हो, आपने वही क्यों चूज किया? सॉरी, right? They'll be giving their answers, right? और उसके पीछे का रीजन आप ढूंढिए, why they want to grow in their business or their career or their job, whatever it is. So जब आप 3 क्वेश्चन पूछते हैं ना मिनिमम, you come to the actual root cause of the problem or the desire, तब आप उनसे रिलेट करके अच्छे से बात कर सकते हैं, right? Let's come to the stage 3 where you repeat the challenges जो उन्होंने बताया है आपको. इन्होंने आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 में उन्होंने आपको चैलेंजेस अपने बताया, राइट? स्टेप 3 में यू हैव टू रिपीट विथ एन एम्पैथेटिक टोन अबाउट द वरीज, राइट, एंड द डिजायर्ड आउटकम्स. टेक देयर कन्फेशन ऑन व्हाट वेंट रॉन्ग. मे बी दे माइट हैव ट्राइड अर्लियर एज वेल. उन्होंने दवाई ट्राई की होगी, है ना? दवाई ट्राई की होगी, लेकिन दवाई के बाद उनको साइड इफेक्ट होने लगा. So that may be a wrong thing which happened with you. Especially I'm talking in case of Avani, क्योंकि Avani is yes sir. ठीक है ना? Then ask about their time and money commitment. कि भाई यदि आपको ये प्रॉब्लम है, आप इतने दुखी हो, परेशान हो, तो क्या आप कमिटेड हो डिसीजन लेने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए? क्योंकि भाई सोल्यूशन के लिए डॉक्टर के पास भी आप जाओगे, डॉक्टर भी फी लेगा, दवाई लेगा, है ना? गारंटी तो कोई नहीं देता जिंदगी में, लेकिन यदि आप मेरे साथ काम करोगे तो आई हैव सर्टेन टेस्टिमोनियल्स व्हिच प्रूव्स दैट मेरे सिस्टम वर्क करते हैं और बिना मेडिसिन के आपको मैं हेल्प कर पाऊंगी, राइट? सो इफ यू आर रेडी, कैन वी मूव अलोंग? नाउ वी हैव टू आस्क क्वेश्चंस अगेन. आगे बढ़े नहीं बढ़े? यदि यहीं पे कहते नहीं 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 अभी भी मैं तो डिसीजन नहीं ले सकता, तो आपको यही पूछना होगा कि भाई सो हु इज गोइंग टू टेक अ डिसीजन ऑन योर बिहाफ? जिंदगी आपकी है किसी और की? यदि आपकी जिंदगी है, ठीक है, आपकी जिंदगी
में हो सकता है आपके हस्बैंड का रोल बहुत ज्यादा हो, आपके फैमिली मेंबर का किसी का रोल बहुत ज्यादा हो, तो इफ यू आर वरीड, आर दे नॉट वरीड अबाउट यू? If not, then there is something wrong. And if they are really worried, bring them on a call. Let me talk to them. है ना? यदि आपको शायद बात करने में झिझक हो रही है, let me talk to them. Let me ask why they are not helping you to, get rid of this problem. है ना? That's way. Simple. So again, you need to ask questions. And उसके बाद आपको स्टेज 4 में once they say कि yes, I'm okay to take a decision, यहाँ के बाद if they say कि नहीं मैं तो डिसीजन ही नहीं ले सकती इस केस में भी, जबकि मैंने आपको बोला था कि क्वालिफाइड लीड होती है तो ये केस अपने आप ही हट जाता है एक्चुअली, लेकिन इसके बाद भी लोगों को ऑब्जेक्शंस होते हैं। यदि आप कहते हैं कि नहीं नहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेट मी गो अहेड, उसके बाद आप अपना ऑफर दिखाइए कि यस आई हैव अ प्रोग्राम, इफ यू आर रेडी टू मूव अहेड, I have a 3-month program or whatever program you have which will help you give this outcome. और उसके बाद प्राइस दिखा के कीप योर माउथ शट, बोलना नहीं है कुछ भी, लेट देम गेट बैक टू यू ऑन द कॉल इटसेल्फ, राइट? यदि वो पूछते हैं कि ठीक है इसमें और कुछ क्लैरिटी चाहिए तो आप उनको क्लैरिटी आप दे दो, वो कुछ हो सकता है और क्वेश्चंस पूछे, हो सकता है उनको कुछ ऑब्जेक्शंस हो जो उनके दिमाग में हो वो पूछे, यहीं पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का केस आता है। जब यहाँ तक भी सब होने के बाद यहाँ के बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग शुरू होता है, अब उनके दिमाग में 50 क्वेश्चंस आएंगे, मेरे लिए काम करेगा नहीं करेगा, कितना टाइम लगेगा जी, क्या गारंटी है जी, कितना पैसा लगेगा, वगैरह 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 वगैरह, है ना? सो हियर यू नीड टू हैंडल ऑब्जेक्शंस व्हिच आई एम गोना कवर टुमारो, ठीक है? सो दिस इज स्टेज 4। और उसके बाद आप उनको स्टेज 5 में कुछ एडवांटेज दीजिए कि आप पेनफुल करते हैं, कुछ बोनस दीजिए, कुछ पेमेंट ऑप्शंस दीजिए, राइट? और फ्यूचर पेसिंग इज समथिंग वेयर इन यू टॉक अबाउट व्हाट विल हैपन वंस दे स्टार्ट वर्किंग विथ यू, कैसे कैसे होगा, आप उनको कैसे स्टार्ट करेंगे, फिर कैसे क्लासेस लेंगे, उसके बाद पहले स्टेप में आप क्या कवर करने वाले हैं। यू जस्ट नीड टू कीप ऑन टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर थिंग्स, assuming that they have already paid you or they have already enrolled with you. इसको कहते हैं फ्यूचर पेसिंग, सेल्स का एक वर्ड है फ्यूचर पेसिंग, which you need to do. ठीक है? That's it. So we are done with day 1 today. So tomorrow we are going to have this one, understanding objections, psychological reasons of objections, common objections, remedies to objections, and definitely we are going to have mock calls, right? We'll be having mock calls for different objections. बहुत सारे लोग हैं, we'll take multiple objections, and now I'm open to any of the questions if you have. I'm done and it's 8:26, hardly 1.5 घंटे लगे. So anybody has a question, please do let me know so that I answer from today's session. Sales से related कोई भी question हो तो please बताइए. सर मेरा क्वेश्चन है नॉट सेल्स रिलेटेड एक्चुअली, दैट इज अबाउट मुझे क्या होता है, मेरा जो क्लाइंट है ना वो पूरा अपना इमोशनल जर्नी शेयर करता है, तो फिर जब मैं कैरियर के लिए किसी को गाइड कर रही हूँ, फिटनेस के लिए गाइड कर रही हूँ, तो आई कैन सेल माय प्रोडक्ट वेरी वेल कि इतना आपको पे करना है। बट जब ये डिप्रेशन के लिए मैं सेल कर रही हूँ उस टाइम पे मुझे ऐसा होता है कि इफ समवन इज गोइंग थ्रू अ लॉट एंड हाउ टू चार्ज देम, तो वहां पे वो मेरा थोड़ा हेजिटेशन आ जाता है खुद को सेल करने के लिए। मेरा टूल्स मेथड टेक्निक्स उस पे मुझे काफी कॉन्फिडेंस है कि मैंने जो कोर्स बनाया है वो वर्थ है, जो मैं प्राइस कर रही हूँ उससे ज्यादा है वर्थ है, बट स्टिल वो मुझे मतलब खुद का वो होता है कि मैं इस कंडीशन में उसको कैसे चार्ज करने का बोलूं। ओके, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आपने देखा होगा बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, है ना, आप डेथ बेड पे भी हो तो बोलता है भाई 5 लाख रुपए लिखा। मूवी में भी आपने देखा होगा, इतने पैसे जमा करो नहीं तो ऑपरेशन नहीं होगा, है ना? तो क्या होता है ना, इट्स अ प्रोफेशन। यदि आप इसको प्रोफेशन की तरह कर रहेंगे तो आपको ये नहीं सोचना है कि आप उनसे पैसे ले रहे हो। आप ये सोचो, इट इज अ चेंज विच इज रिक्वायर्ड इन योर ओन माइंड एक्चुअली दैट्स माइंडसेट इशू है, नॉट सेल्स इशू, आई कैन एग्जैक्टली ऑनेस्टली एग्जैक्टली। तो आप अपने माइंड को ऐसे ट्रिगर करो कि यू आर हेल्पिंग देम टू मूव आउट ऑफ सच थिंग्स व्हिच इज लिटरली हार्मिंग देम अ लॉट। उसका तो कोई प्राइस ही नहीं है। अच्छा बताओ, स्ट्रेस का कोई प्राइस है क्या? नहीं मेंटल या गनी का कोई प्राइस है? टेंशन का नहीं कोई प्राइस है? नहीं तो जब राइट इन सब चीजों का तो कोई प्राइस नहीं है, तो वट एवर प्राइस यू आर चार्जिंग वेरी लेस एक्चुअली। और इन सब चीजों के लिए लोग कितना कितना पैसा दे सकते हैं, यू कैनॉट इवन इमेजिन।
क्योंकि जिस इंसान को तकलीफ होती है ना, वो कुछ भी करने को राजी हो जाता है. So yeah, so you have to make this shift in your mindset that you are helping somebody, literally you are serving somebody to come out of that big pain which they are literally unaware कि उससे उनको क्या नुकसान हो सकता है और आगे फ्यूचर में जा करके, है ना. सिमिलरली मतलब मैंने डॉक्टर का एग्जांपल दिया, आप हाँ इतना नहीं, बड़ा वो आपने बहुत सही बोला। मतलब अभी मुझे जब भी वो होगा, वो मैं डॉक्टर का माइंड में हॉस्पिटल याद कर लूंगी कि नहीं, तो मुझे कॉन्फिडेंस ज्यादा आ जाएगा। थैंक यू सो मच। welcome, good. Okay, anybody else has a question? Anupam, Siddharth ji, Jayati ji, Vaishali ji. Anybody? सब लोग खाना खाने चले गए क्या? नहीं नहीं, खाना खाने नहीं गए। नहीं अभी नहीं इधर ही हूँ। कैमरा बंद होने से पता नहीं लगता ना कौन क्या कर रहा है. हाँ बट थोड़ा इस टाइम पे सब आते हैं तो कोई बात नहीं. कोई क्वेश्चन है तो बताइए. So I'm done with day 1 on sales and I've covered all those things which I'm using into my business and this is the summary of what I have learned in my last more than 20 years of sales career. अभी उसको मैं ऑनलाइन बिजनेस में यूटिलाइज कर रहा हूँ. एंड बोले ना कि ये एक स्किल है. यू नीड टू बी वेरी ईगर टू लर्न ऑल दोज स्किल्स. जितना बढ़िया आप करेंगे आपका कन्वर्जन उतना अच्छा होगा. एज सिंपल है ना. सो कोई क्वेश्चन है एनीबडी? नो क्वेश्चन। आलोक जी, आई हैव जी, वन क्वेश्चन. हाँ बताइए. जैसे आपने स्टेज 5 का बोला ना, हम्म सो फ्यूचर पेसिंग एंड ऑल, जैसे मेरे पास एक कस्टमर आया है, वो कुछ मेरा जो भी फेसबुक देखकर आया, मतलब 2-3 महीने पहले उसने मैसेज किया था, तो मैंने देखा नहीं, आज मैंने सॉरी मैसेज कर दिया. सो Okay. देन ही स्टार्टेड टॉकिंग एंड ऑल. हम्म बोला आपसे बात करनी थी, आई थिंक यू आर द राइट फिट फॉर दिस थिंग. अपनी वाइफ के बारे में बात कर रहा था. हम्म सो ही सेड शी इज नॉट इंटरेस्टेड. मैं इंटरेस्टेड हूँ, पर क्या करूँ, कैसे उनको मनाऊं. सो आई जस्ट रिकॉर्डेड वन वीडियो regarding her wife's problem Okay. in a very subtle manner, जहाँ पे उनको ये समझ में आया कि she is not the culprit, अगर उनको कुछ हेल्थ इशू है, and this is how it happens. Yeah, So yeah. it is purely curable. हम्म तो मैंने उनको भेज दिया वो, Okay. and I didn't talk about much. मैंने प्राइस की इनिशियली उन्होंने पूछा तो मैंने बात कर दी, हम्म but I didn't talk about it much. So मैंने फिर भेज दिया, मैंने कहा आप अपनी वाइफ के साथ देखो. He said मैं वाइफ के साथ कर लूंगा, शायद वो मान जाएगी. So now what should be my next stage? मतलब मैंने वो भेज दिया. I haven't sent anything for the payment and all, and I don't want to talk about it right now because obviously he wants to convince his wife, but मतलब कहीं वो बीच में गैप ना हो जाए, इसलिए I just want to ask क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होना चाहिए. तो नेक्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए, जब आपके साथ वो कॉल पे थे ना, क्या ऑडियो कॉल था या जूम कॉल था, क्या था? ऑडियो कॉल था एक्चुअली. ही वाज कंफर्टेबल इन ऑडियो कॉल, तो मैंने कहा ठीक है, व्हाटएवर. मैं रिकमेंड करूंगा जब भी इस तरह का कोई केस हो ना, मतलब कोई भी हो, तो उनको वीडियो कॉल पे बुलाइए पहला एक्चुअली चीज. मैंने भी यही बोला, हाँ. बट ही सेड मैं कहीं और हूँ, ये है, तो इट्स ओके. क्या होता है ना, अब मैं बताता हूँ. कोई कहते हैं कोई कहीं और हूँ, तो ठीक है कोई बात नहीं. आप कब फ्री होंगे? आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, एक दिन हाँ के बाद. तो क्या होता है ना, एक्चुअली, हाँ ऐसा मैंने किया है कुछ लोगों के साथ, बट आई फेल्ट कुछ लोग शायद चेहरा दिखाना ही नहीं चाहते, या देखिए रिलक. जिसको प्रॉब्लम होगी ना जयती जी, जिनको प्रॉब्लम होगी वो कैसे भी सोल्यूशन ढूंढेंगे. यदि राइट. बहुत एक्सेप्शनल ऐसी चीज होंगी जहाँ पे, मैंने तो ऐसा भी देखा है, स्पेशली द डिफरेंट रिलीजन वुमेन, वो कहते नहीं मेरे को चेहरा ढकना है, वो भी चेहरा हटा करके आते हैं जब उनको प्रॉब्लम होता है तो. राइट. सो अगेन दिस इज एन एक्सक्यूज. यदि वो बंदे को इतनी ही प्रॉब्लम है अपनी वाइफ को लेकर के ना, तो यदि आप देखिए इसमें दो चीजें हैं. यू डिग्रेडेड योर सेल्फ एक्चुअली by talking to him on an audio call. You should have raised your authority by saying कि hey so and so, I definitely would love to help you, but this would happen best when me and you go on a Zoom call, जहाँ पे मैं आपको बताती कि exactly क्या करना है ना. तो पहला होता, यदि उसको सही में पेन है तो आपके साथ वो टाइम लेता. तो एक तो आपने अपनी अथॉरिटी बढ़ा ली भाई सेइंग कि भाई मैं ऐसे ऑडियो कॉल पे नहीं आऊंगी. ठीक है. सेकेंडली, जब आप ऑडियो कॉल से की जगह वीडियो कॉल पे जाते हो ना, सो यू हैव द फुल अटेंशन ऑफ द ऑडियंस, जो प्रोस्पेक्ट है ना, आप उनको बताओगे. और वहां पे आपको ये भी ऑप्शन मिलता कि यदि आप अपनी वाइफ के बारे में बात करें थी घर में, तो वाइफ को भी बुला लो ना, मैं दोनों के साथ ही बात कर लूंगी. हो सकता है वो कि असल में वो वही चीज बात तो हुई, तो ही वाज सेइंग कि शी इज नॉट विलिंग टू इवन टॉक. वो
ना डॉक्टर के पास जाना चाहती है, ना वो कुछ देना चाहती, मतलब चलिए वो कोई कुछ बात जो भी नहीं, जो उसकी प्रॉब्लम है। तो कोई ही बात सेड कि मैं उनको कैसे कन्विंस करूं, नहीं। या तो आप मुझे मेरे लिए कुछ ऐसा कर दो कि मैं उनको साथ में ले आऊं, मतलब आई डोंट नो वो चलिए एक्सक्यूज ठीक था है, कि क्या था, जो भी कोई था, बात ही नहीं। सेड। हाँ। देखिए जरूरत है तो कोई ना कोई, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम हो सकती है, वाइफ नहीं आना चाहती है, वहां भी आप यही कह सकते थे कि ठीक है नहीं आना चाहती है, तो वही तो प्रॉब्लम है ना। द प्रॉब्लम है कि वो आना नहीं चाहती है, उसका सोल्यूशन चाहिए नहीं चाहिए। तो उनको आप यही बोलो कि यदि कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो उनको है ना। यदि उनको प्रॉब्लम है और वही नहीं पार्टिसिपेट करेंगी या वही नहीं आगे बढ़ के आएंगी, तो कैसे सोल्यूशन होगा रिमोटली? हर चीज का रिमोटली सोल्यूशन तो नहीं हो सकता ना। करेक्ट करेक्ट, मैंने इसीलिए वो वीडियो बना के भेजा, बिकॉज ही वाज सेइंग कि उनको वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही नहीं दिखती है, उनको हेल्थ इश्यूज है, बट शी इज लाइक वेरी ओके विद इट, चलता है, कुछ नहीं होता ऐसा वैसा, तुमको मेरे में प्रॉब्लम दिखती है, मैं चाहता हूँ कि वो ठीक हो जाए। तो मैंने कहा आप कम से कम ये वीडियो दिखा सकते हो, नेक्स्ट टाइम जब कॉल पे आना तो उनको हाँ साथ में लेके आना, वीडियो एग्जैक्टली। कॉल पे आप आना, कन्विंस करने वाली जरूरत नहीं, मैं उनको सारी चीजें ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ वीडियो में, और मैं उनको बता दूंगी कि हाउ इजिली शी कैन बी क्योर्ड। एग्जैक्टली। तो मे बी आपसे बोलने से नहीं समझ रही है, वो मेरे बोलने से समझ जाए। देखिए अब इसमें एक और चीज मिसिंग है, यहाँ पे क्या हुआ, आपने प्रोफेशनली तो बहुत अच्छा सोल्यूशन दे दिया, राइट? आप उनसे इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो, स्पेशली वाइफ से। जो हस्बैंड है राइट राइट, उनके ऑब्वियसली साथ आपने वाइफ से बात नहीं। करी। हाँ, जब आप वीडियो कॉल पे जाते हो ना कहीं एक इमोशनल कनेक्ट होता है, जब एक दूसरे से हम देख करके बातें करते बात हैं ना। करते हैं, सो दैट इज दैट ऑल्सो आई रिक्वायर्ड। अंडरस्टैंड। हाँ, यस। ठीक वो है, है। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट। प्राइस आपने बता दिया, कोई बात नहीं, प्राइस ऐसे नहीं बताना चाहिए। हाँ, एक्चुअली ही जस्ट वांटेड टू नो, फिर भी आप बता दीजिए, फिर भी आप बता दीजिए, आई नहीं तो जस्ट। आपको क्या बोलना था उसमें? आपको ये बोलना था कि देखिए मैंने आपको एक वीडियो बना करके दिखा दिया है, राइट? सोल्यूशन है इसमें, आप पहले डिस्कस कर लो एंड कम प्रिपेयर्ड कि हाँ आपको लगता है कि ये सोल्यूशन काम करेगा काम मेरे लिए, करेगा। तो हाँ। इफ यू आर कन्विंस्ड देन आई टॉक अबाउट द प्राइस ना। हाँ, अभी प्राइस का क्या राइट, मतलब है ना? एग्जैक्टली। तो वो ये मुझे लगा बाद में कि शायद वैसा करना चाहिए था, बट हम्म, वो जब कॉल पे होता है ना, तो वही सामने वाला किस हिसाब से आपको पूछ रहा है क्या है उस समय, वी मिस दैट अंटिल वी हैव हाँ प्रैक्टिस्ड इनफ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वी नीड टू प्रैक्टिस टू हैंडल ऑल दिस। राइट। मैं हमेशा मतलब वही बात है कि जब तक कोई सामने से आके नहीं पूछता है कि यस आई एम रेडी, तब तक प्राइस बताने का कोई मतलब ही नहीं है ना। हम्म। है ना? सो ये तीन चीजें आप आगे से कीजिए। अगला बार जब उनके साथ जब कॉल हो ना, गो ना हम्म। जूम कॉल, आई एम डेड श्योर दैट क्लाइंट विल गेट कन्वर्टेड। हम्म। बिकॉज मैं बोला ना हमेशा कि आपकी एक्सपर्टीज के बारे में कोई डाउट नहीं है। द ओनली थिंग मिसिंग इज द इमोशनल कनेक्ट एंड द क्वेश्चंस व्हिच यू नीड टू आस्क सो दैट द क्लाइंट टेक्स अ डिसीजन। यही तो पूरा सेल्स का गेम है। करेक्ट होप करेक्ट। आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। या डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। वेलकम। यस, एनीबडी एल्स? अनुपम, वैशाली जी एंड सिद्धार्थ जी, डू यू हैव एनीबडी? सर कैमरा मेरा काम नहीं कर रहा है, आई एम कोई बात नहीं, ट्राइंग टू स्विच इट ऑन बट स्टिल। कोई बात नहीं, कोई क्वेश्चन है तो बताइए। आज के नहीं लिए ठीक। हाँ वैशाली जी, आप कुछ बोल रही थी आज के लिए? आज के लिए नहीं है। आज के लिए नहीं है, ओके। ठीक है, सो कल मैं आप सब लोगों को एक एक ऑब्जेक्शन बोलूंगा और मेरे साथ रोल प्ले करना है। सो प्लीज कम प्रिपेयर्ड टुमारो एंड ब्रिंग वन ऑफ दोज बिगेस्ट ऑब्जेक्शंस व्हिच यू गेट नॉर्मली, है ना? जो भी आपको लगता है, कुछ रिपीटिशन भी होंगे, कोई बात नहीं, कुछ कॉमन ऑब्जेक्शंस तो मैं खुद ही ऐसे शो करूंगा, बट आई वॉन्ट मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शंस टू बी सॉर्टेड आउट राइट हियर ऑन द कॉल नॉर्मली, जो कि करना चाहिए आपको भी, सो दैट यू हैव मोर सेल्स कन्वर्जन्स। दैट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टुडे वर्कशॉप, राइट? ऑल डन? या श्योर। Thank you so much for your time and active participation. I'm looking forward Thank to you. meet you again at 7 p.m. tomorrow, and we'll have lots of Ajka. If anybody wants to give any feedback on today's session, I'll love to, hear that. Yeah, that was absolutely on point, all stages. ऐसे नहीं वीडियो ऑन करके अच्छा अच्छा, प्लीज। okay. या Okay. जयते जी। So yeah, that was wonderful session with all the points covered, almost whatever people get usually as an objection, and I think we just have to practice. अभी तो That's the major ऑब्जेक्शन मैंने part of हैंडल it. ही नहीं किया, आई वाज ओनली टॉकिंग अबाउट सेल्स।
Right. But it's still a lot of points are missing from our this aspect, sales aspect. So we should be knowing each and everything. So that was wonderfully covered. Thank you so much for that. Welcome. Thank you so much, Jayati ji, for your feedback. Avni, would you like to say something? यस सर जो भी आपने स्टेजेस बताया ना इट वाज रियली वेरी थॉटफुल और आपने जैसे स्टेजेस वाइज डिवाइड किया था कि पहले रेपो बिल्ड करो फिर पर्सनल कनेक्शन उसके साथ बिल्ड करो और फिर उनकी लाइफ में मतलब एम्पैथी दिखा के थोड़ा डिग आउट करो दैट वाज रियली गुड कि उनके साथ एक रिलेशन डेवलप हो जाए जैसे आपने इंश्योरेंस का भी बोला कि कोई हमें आके बहुत अच्छा एजेंट है और अच्छी सी पॉलिसी बताता है ना तो हम कन्विंस हो जाते हैं पर जिसको जानते हैं ना उससे खरीदना प्रीफर करते हैं राइट तो वो जो आपने रेपो का बोला ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीआर उनसे बनाना चाहिए तो इन फ्यूचर भी वो लोग परचेस करे तो हमारे से ही करे ट्रू तो वो मुझे काफी कनेक्टिंग लगा स्पेशली मेरे मेरे फील्ड में राइट थैंक यू सो नाइस मच गुड थैंक यू सो मच फॉर फीडबैक। वैशाली जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? आज तो मैं बहुत एकदम सुन रही थी और ग्रैस्प करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि बहुत टायर्ड भी हूँ मैं जर्नी से Okay. जस्ट आई हूँ अभी I understand. जस्ट बिफोर योर सेशन और फिर Hmm. आप सेशन स्टार्ट किया एंड आई एम ट्राइंग टू ग्रेस्प एवरीथिंग तो अभी आज तो मैं नहीं कल कोई बताऊंगी बात नहीं। ठीक है, मुझे टेक लगता है रेस्ट। वत्सल जी को अहमदाबाद से वो दिल्ली की ठंड काफी हैवी लग रही है हाँ हाँ एग्जैक्टली। मैं एक्चुअली मैं अभी जर्नी कर कर आ रही हूँ अवनी जी एकदम मतलब मैं 3 दिन से 4 दिन से कंटिन्यूस जर्नी में थी मैं अभी जस्ट इवनिंग को रीच आउट करी हूँ चलिए और रेस्ट कीजिए। विल अगेन हैव बेटर सेशन टुमारो आपके लिए। आप रेस्ट करेंगे, फ्रेश रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? या या Okay, we have Anupam and Siddharth ji. Anybody who wants to ask another question? नो सर, नो क्वेश्चंस। Okay. मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा है तो बट आई वुड लाइक टू से कि ये जो आपने बताया ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सेल्स का और वगैरह के बारे में डिफरेंसेस किस तरह से अप्रोच करो काफी ज्यादा इन डेप्थ था। Mm-hmm. वो ये चीजें इम्प्लीमेंट करना बट क्या है कि चूंकि हम सेल्स बैकग्राउंड से है नहीं तो बाय डिफॉल्ट कुछ और ही मोड में चले जाते हैं Right, I तो understand. गेटिंग यूज टू इट इज क्या बोलेंगे स्लो प्रोसेस। हाँ हो जाएगा। इट्स अ लर्निंग थिंग। मैंने बोला ना, इट्स एन आर्ट विच यू नीड टू जी लर्न। धीरे धीरे होगा। जी एक दिन में कोई सेल्स एक्सपर्ट नहीं होता। मैं आज 20 साल से कर रहा हूँ, फिर भी मुझे लगता है यार कई बार कुछ चीजें मैं भी मिस कर जाता हूँ। दैट्स जी ओके, जी जी वी आर ऑल जी ह्यूमंस। बट जी ठीक है, वी शुड बी ओपन टू लर्निंग, दैट्स इट। जी बट ये है कि ये एक्सपेक्ट पूरा क्लियर है कि सेल्स इज चीज सेल्स इज इकोनॉमी समथिंग का बहुत जरूरी। भी जो सब कुछ है हम्म। रिफाइनरी ऑयल प्रोडक्शन सब कुछ है बट सेल्स नहीं होगा तो आमदनी कैसे होगी। एग्जैक्टली। जी आपने जी सुना होगा अभी पैंडेमिक में क्या हुआ ना, जितनी भी फैक्ट्रीज, स्पेशली मारुति कार के बारे में बताता हूँ उनका। जी चूंकि उस समय पैंडेमिक में क्या हुआ ना, सारे शोरूम्स वगैरह बंद हो गए, सेल्स नहीं हो रही थी। उनकी जो जी जी इन्वेंट्री थी, इन्वेंट्री रखना उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था, है ना? जी बना के रखोगे कहाँ, उतना एक एक कार जी जगह लेती है ना। जी जी तो जी हर कंपनी और हर प्रोडक्ट में वही बात है कि बनाना अपनी जगह में ठीक है, लेकिन बेचेंगे नहीं तो सब फिर बेकार है, जी पैसे नहीं जी आएंगे। वो एग्जैक्टली। डेड स्टॉक होता है ना, इट्स अ डेड मनी एक्चुअली। हम्म। गुड। चलिए, विल लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू टुमारो अगेन। कल हम जी ऑब्जेक्शंस हैंडल करेंगे, तो आप भी रहिएगा, इट विल बी गुड। जी सिद्धार्थ जी, यू वांट टू से समथिंग? No, as usual, the session is amazing. It's a mind-blowing session. Looking forward for day 2. Thank you so Yeah. much. Good. So thank you so much, everyone. It was really nice, pleasure talking to you, and I hope I have given you the sufficient, things which I have promised. आलोक जी ऐसा आपको बोलना ही नहीं चाहिए थैंक यू रियल नहीं, चलिए इट्स ऑसम जस्ट ऑसम चलिए, थैंक यू सो मच। विल मीट अगेन टुमारो एट 7 PM। ठीक है, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। बाय बाय।